Then share my screen. Share. Okay. Now you will be able to see my screen. So today we are going to start with the new concept or new topic that is paid advertisement. So basically, uh, paid advertisement help you. So before we start, I would like you to brief about the paid advertisement, that why paid advertisement is important, and what are the benefits of paid advertisement, blah blah blah. So in the previous lectures I have only explained these things verbally only, but from your batch I would like to make it written as well or documented as well, right? So that whenever you get a chance, if you read it, you expand your horizon of thinking uh, in the aspect of paid advertisement. So basically, if I would like to know कि भाई पेड एडवर्टाइजमेंट क्यों करना चाहिए, राइट? अगर गूगल ऑर्गेनिक अवेलेबल है तो हमें क्यों पेड एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? व्हेन गूगल ऑर्गेनिक इज ऑलरेडी अवेलेबल, राइट? जिससे फेसबुक ऑर्गेनिक इज आल्सो अवेलेबल, लिंक्डइन ऑर्गेनिक इज ऑलरेडी, ऑल द प्लेटफॉर्म provide us the facility to promote ourselves or company with the help of organic, I mean without paying. So why people, how you should convince yourself or your client to go with the paid marketing or PPC, or you can say any type of paid marketing. Can anyone just let me know? Hello. Yes. Sir, most conversions are happening on first page, and if our site is new or not properly done, we are Okay. not going to have our entry on first page Okay. or Very first good. three. Very good. Very good. Yes. So yes, this is the case. In the case, you are newbie, and if you want fast, if you want lead or conversion fast, because sometimes I have came across the client who do not, don't have patience to wait for 5 to 6 months. So in that case, the only option left for us is the paid marketing, राइट? तो वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि भाई, वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि जो केस में हमारे जो केस में क्लाइंट को जल्दी रिजल्ट चाहिए, राइट? वो केस में आपको उनको पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रपोज करना है। लेकिन कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप प्रपोज करो, उससे पहले आपको एक फंडामेंटल चीज टेक केयर करनी पड़ेगी कि क्लाइंट को आरओआई मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, राइट? एंड उसका टारगेटेड रीजन क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये सारी फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ वाई पेड मार्केटिंग। सो इन, जैसे विशाल ने बताया, इन मेजॉरिटी ऑफ द केस when you are starting a new business or website or app, you don't have any presence, right? and and google Google also does not give ranking immediately. Immediately means that is within 2 to 3 months. In this case, if you want fast result, what I mean by fast result, conversion, either lead or sell, best option for you left is paid marketing, right? Number one, why paid marketing?
Okay. Number 2, benefits of paid marketing. Right? Right? कोई बताएगा मुझे पेड मार्केटिंग की क्या फायदे हैं? What are the benefits of paid marketing? Remarketing. नहीं, वो तो टाइप है पेड मार्केटिंग का. बट सर पॉसिबिलिटी उसमें ही है ना, उसमें तो मतलब ऑर्गेनिक में वो है ही नहीं ना, ये बेनिफिट है ना मतलब. Ranking. नहीं वो सही है, लेकिन वो रीमार्केटिंग आप कर सकते हो, वो एक बेनिफिट है, एग्री. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई उसके कोर बेनिफिट क्या है जिससे कैश इनफ्लो होता ही लगा है. सर्च में टॉप पे आ सकते हैं, सर्च में टॉप पे आ सकते हैं. कैश इनफ्लो होता ही लगा, कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो, वेरी गुड. हाँ, એ कैश ઇનફ્લો કેવી રીતે વધારી શકાય? લીડ જનરેશન થી લીડ આવે તો લીડ ક્લિક થાય તેમાંથી જનરેશન કેશ ફ્લો મળે આપણને, બિઝનેસ મળે. કરેક્ટ. જીગરભાઈનો ખુદનો અનુભવ કહે છે, એટલે ખુદનો અનુભવ જે મારે આપણને કહી રહ્યા છે કે એમણે હા પ્રથમ દિવસે એડ લાઈવ કરી અને એમની બુટીકની એમના વાઇફ જે કરી રહ્યા છે, તો એમાં he has received more than 15 calls. Yes. So સાચી વાત છે. yes. અને બિઝનેસ પણ મળ્યો છે. business પણ મળ્યો છે. yes. Conversion, he has also received not only lead, he has, because see Google માં હંમેશા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો કે કન્વર્ઝન તમને મળશે. કેમ? કારણ કે યુઝરનો બાઇંગ ઇન્ટેન્શન છે નહીં તમને કોન્ટેક્ટ કરે. કોલ્ડ કોલિંગ નથી, આ કોલ્ડ પ્રોસ્પેક્ટ નથી, hot prospect છે, because user is also interested, right? So benefits of paid marketing ma you can show your ads, you can define audience, budget, right? You can define everything, you can say. If I would like to write it in a more generic way, you can define to whom you would like to show, benefits of to whom you would like to show your ads, show. Number 2, what you would like to show, Number 3, when you would like to show. Yes, right. And with or how much time spent. yes, and budget. And you can decide your daily budget, starting And even from we can target the region. $100. Yes. Where? Yes, correct, very good. Where you would like to show. Perfect. ये सारी चीज आप डिफाइन कर सकते हो कोई भी पेड मार्केटिंग में हो. ये अभी जो मैं आपको पेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, ये आपको दुनिया के कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गूगल, राइट? गूगल तो एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है जिससे आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो, लेकिन दुनिया के कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में चले जाओ, वेदर इट इज अमेजॉन, वेदर इट इज फ्लिपकार्ट, वेदर इट इज स्नैपडील, वेदर इट इज इंडिया मार्ट, वेदर इट इज जस्ट डायल, सुलेखा, कोई भी में चले जाओ, ये कॉन्सेप्ट, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो सभी में आपको हमेशा काम में आएंगे. और जितनी बारीकाई से आप इसको मेजर करोगे या इसको कंसीडर करके आपकी स्ट्रेटजी बनाओगे, बिलीव मी आपको आरओआई मिलेगा, या पहले से ही पता लग जाएगा कि आरओआई नहीं मिलने वाला, राइट? बिफोर यू स्पेंड अ सिंगल बक्स यू विल बी एबल टू नो कि इससे आरओआई मिलने वाला है कि नहीं, राइट? दैट इज द ब्यूटी, राइट? आप नॉर्मली क्यों ये ब्यूटी है? क्योंकि ये सारी चीज आप डिफाइन कर सकते हो. किसको एड दिखाना है, मानी ऑडियंस, राइट? टू whom you would like to show the ads, that is audience, right? Where you would like to show, that is demographic, right? डेमोग्राफिक में क्या आ जाता है कि भाई रीजन है, पेरेंटल स्टेटस है, उनकी इनकम है, ये सारी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट? ये आगे उसमें आएगा. What you would like to show, money ads. When you would like to show, right? When, money कब, right? That is day plus time, right? And budget, your daily budget. ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो आप खुद, और ये सारे पिलर है.
कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में आप चले जाओ, अगर ये 5 चीजों पर आपका कंट्रोल है, राइट, या ये 5 चीजें आप रेगुलर इंटरवल पर एनालाइज करते हो, तो बिलीव मी, हो ही नहीं सकता कि आपको आरओआई ना मिले इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। क्योंकि ये पांच चीज जितनी अच्छी तरीके से आप कंट्रोल करोगे, राइट, दिस 5 थिंग्स जितनी अच्छी तरीके से आप कंट्रोल करोगे, उतना आपका पैसा राइट जगह पर इन्वेस्ट होगा, राइट। एक मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा कोट है कि मार्केटिंग में सिर्फ 50% अमाउंट ही आपको आरओआई देती है, या 50% अमाउंट, या फिर उससे भी बढ़कर एक आदमी ने बोला था कि 20% अमाउंट, मानी 20% ही आपके पैसे 100% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जो 80% होते हैं ना, वो जीरो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। समझ रहे हो ये कोट? तो लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है लोगों को कि वो 20 और 80 कौन है ना, वो नहीं पता लगा पाते कि वो 20% वाला कौन है जो 100% रेवेन्यू जनरेट करता है, और 80% वाला कौन है जो एक भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, राइट। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉसिबल है कि वो 20 और 100% कौन है, राइट। कैसे? अगर ऑडियंस में आपको पता लगा कि विद्यानगर से आई हुई ऑडियंस नडियाद से ज्यादा कन्वर्ट होती है, ये एक एग्जांपल है, राइट। ये डेमोग्राफिक में आएगा एक्चुअली। ओके, ऑडियंस में ये पता लगा कि 18 से 35 साल वाले लोग ही कन्वर्ट होते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, 40 प्लस वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते। तो व्हाट आई शुड डू, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, 40 प्लस वालों को ऐड ही नहीं दिखाऊंगा, करेक्ट। तो जो वो 80% वाला था, उसमें से कुछ पोर्शन निकल गया एड्स। मैंने 3 ऐड बनाई और आई केम टू नो दैट ये ऐड सबसे ज्यादा सीटीआर जनरेट करती है। सीटीआर मानी क्लिक्स और इंप्रेशन का रेशियो है। जितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, उसमें से कितने लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, मानी क्लिक की, वो पता लग गया। तो मैंने जो नॉन वर्किंग ऐड थी वो निकाल दी। डेज प्लस टाइम, मुझे पता लगा कि मुझे सैटरडे संडे को बिजनेस मिलता ही नहीं है। सैटरडे संडे को लोग सिर्फ क्लिक करते हैं, लीड नहीं देते या कन्वर्ट नहीं होते। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टॉप शोइंग माय एड्स ऑन संडे एंड सैटरडे एंड संडे। मुझे ये पता लगा कि टाइमिंग में 8 से 10 बजे सबसे बढ़िया कन्वर्जन होता है। लोग खा पी कर बैठे होते हैं और फुल टाइम स्पेंड करते हैं। आई शुड इंक्रीज माय बजट एट दैट टाइम। यू कैन डिसाइड योर डेली बजट। मुझे पता लगा कि वो एक ग्राफ आता है, उसमें ग्राफ में क्या आता है, योर बजट वर्सेस में आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो डेली बजट है ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको और ब्रॉडर टर्म्स में क्लियर करवाना चाहता हूँ। जस्ट कहाँ पर है पीपीसी? नहीं इसमें, एक मिनट, मैंने कहाँ पर रखा है? देख लेते हैं, मैंने कल ही देखा था, परसों ही। पेड एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू पीपीसी, नहीं पीपीसी में तो नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट, इसमें अगर आपका नीचे अच्छा है, इसमें ही होगा, इसमें ही है, करेक्ट, यस इसमें ही है, ये रहा, यस ये रहा। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है, ये ग्राफ ये बताता है, जो एक्स एक्सिस है ना, जो हॉरिजॉन्टल है, वो बेसिकली आपकी सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, और जो वर्टिकल लाइन है ना, वाई एक्सिस वो आपको दिखाता है आपकी रेवेन्यू, राइट। जब मैं $0 पाउंड स्पेंड करता था, राइट, तो मेरी रेवेन्यू थी 0, राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिखती है वाई एक्सिस पर। जब मैंने 1.50 पाउंड स्पेंड किए, राइट, तो मेरा रेवेन्यू होता था, मेरी प्रॉफिट होता था मेरा अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस। लेकिन जैसे जैसे मैं बजट बढ़ाता गया, राइट, सीपीसी जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया, राइट, वैसे वैसे सीपीसी मानी कॉस्ट पर क्लिक। एक बंदा अगर आपकी एड पर क्लिक करे तो आपको कितना पैसा स्पेंड करना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर क्लिक, राइट।
तो ये जैसे जैसे मैं बढ़ाता गया वैसे वैसे मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होता गया, और एक लेवल ऐसा आया कि उससे ज्यादा अगर मैं प्रॉफिट, उससे ज्यादा अगर मैं सीपीसी देता हूँ ना, तो मेरा आरओआई नेगेटिव चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट नेगेटिव चला जाएगा, राइट। ये जो 3 पाउंड है उससे अगर ज्यादा आई हैव स्पेंट, देन माय प्रॉफिट विल बी गोज इनटू माइनस। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है और ये आपका पिक पॉइंट है, ठीक है। तो ये बजट का मामला है। बजट में आपको उस तरीके से डेली बजट बोलो या सीपीसी बोलो, उस तरीके से बढ़ाना है कि जैसे जैसे आप बजट बढ़ाओगे ना, आपको चेक करते रहना है कि लीड ज्यादा मिली। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे अगर ज्यादा बजट बढ़ाया ना, तो बजट तो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन आपका सेल उतना ही उतना रहेगा। तो वो जो पॉइंट है ना, वो आपका पिक पॉइंट है। और अगर आपने वो बढ़ाते ही गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका आरओआई नेगेटिव चला जाएगा, जो ग्राफ में हमने देखा, राइट। तो वो डेली बजट का आपको जो ये ग्राफ आपने देखा उस तरीके से थोड़ा आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। वो क्यों होता है ऐसा, उसका भी एक रीजन है, राइट। लेट मी टेल यू द रीजन एज वेल। क्योंकि आप समझो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। वो ऐसा इसलिए होता है कि आप समझो कि मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो सपोज मणिनगर में आपकी रेस्टोरेंट है, राइट। तो मणिनगर में है, तो अभी हम हाइपोथेटिकल ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई 10,000 लोग हैं जो खाने के लिए संडे को जाते हैं बाहर, राइट। उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन ये एक नंबर है, मैं देता हूँ। तो उसमें आप समझो कि अगर मैं रसना रेस्टोरेंट है, जो मणिनगर की बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वो अपनी ऐड चलाती है। अभी वो ऐड उन्होंने चलाया और उन्होंने सबसे पहले बजट रखा था 5,000 या 5,000 1,000 कि भाई सैटरडे संडे में मुझे सैटरडे को 1,000 करना है और संडे को 1,000 करना है। तो 1,000 में वो अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों को उनकी ऐड दिखती थी, राइट। और 300 लोगों में से 20-25 लोग उनकी रेस्टोरेंट पर खाने के लिए आते थे, क्लिक करके वॉट एवर द, उसके बाद जो इंटरेक्शन होता था उससे। अभी क्या हुआ, उन्होंने 1,000 का 2,000 बजट कर दिया, राइट। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। तो ये वो जो ग्राफ है ना, वो आपको क्लियर दिमाग में इम्बाइब हो जाएगा ये एग्जांपल से, ये डेमोन्स्ट्रेशन से। तो उन्होंने 2,000 स्पेंड किया, तो अभी जो 300 लोगों को दिखाते थे उसकी बजाय ऐसे 600 नहीं होते, क्योंकि वो सीपीसी वेरीज करता है, तो 500 लोगों को अभी दिखाया। अभी जो 10,000 लोग है, 5,000 लोगों को दिखाया। हाँ, 10,000 लोग है ना, 1,000 लोग हम लोग गिन लेते हैं, वो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 10,000 में मुझे 5,000 बोलने पड़ेंगे, इसलिए तो 1,000 लोग है ऑडियंस जो खाने के लिए बाहर जाती है। और उसमें से उन्होंने 1,000 जब बजट रखा, 1,000 आए ना रसना वालों ने, तो उनकी एड 300 लोगों को दिखती। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि भाई हमारा बजट डबल कर देना है, 1,000 से 2,000 कर देते हैं। तो 2,000 में उनकी एड 500 लोगों को दिखी। अभी आप समझो कि जो 1,000 लोग जो बाहर खाने के लिए इंटरेस्टेड है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं भाई, मुझे तो वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड जगह पर नहीं खाना है, मुझे तो बाहर खुले में ही खाना है, राइट। आई वुड लाइक टू, वो ऐसे मुझे नहीं खाना है। तो वैसे समझो कि 250 लोग ऐसे होंगे, तो वो कितने भी आप ऐड कर लो, अच्छी कर लो, दे विल नॉट बी एबल टू कन्विंस। कुछ लोग ऐसे है कि भाई वो बोलेंगे कि भाई मुझे तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई बोलेंगे कि भाई मुझे तो ये जो मुझे पिज्जा खाना है या वो खाना है, तो उसमें से आप 250 गिन लो, राइट। तो जो 1,000 हमने गिने थे, उसमें से 500 ही उसके पोटेंशियल ऑडियंस है। जो रिमेनिंग 500 है ना, वो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करने वाले है, वो कितना भी पैसा खर्च कर ले। तो अभी क्या होगा, जो 2,000 है ना, वो उसका पीक प्रॉफिट होगा, 2,000 INR पर डे। अभी 2,000 से वो 2,500 करेगा ना, तो लोग क्लिक भी कर देंगे, राइट। गलती से करेंगे या टेस्ट चेक करने के लिए कि वो लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फुटप्रिंट है ना रेस्टोरेंट में आने वाला, वो 50 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 50, वो उतना का उतना ही रहेगा। तो रसना वालों को क्या स्मार्टली करना चाहिए कि भाई ये जो हमारा 2,000 INR का बजट है ना, वो ऑप्टिमम बजट है, वो हमारा ऑप्टिमम प्रॉफिट वाला बजट है। यस, ये हो सकता है कि कुछ दिन अगर फेस्टिव सीजन है तो आप 2,000 का 3,000 करो, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन ऑन अ रूटीन बेसिस
on a normal weekends, this is the optimum budget to get the optimum profit. Clear? So this is how this daily budget works. Clear? Okay. So benefits of paid marketing. Sir, a question. हाँ बोलो ना. Google ads, like a particular આપણે region ને બધું select કર્યું, right? So how Google works into targeted audience, targeted region? They look into their profile, whatever the data we assign to Google, like while creating Google account or any social account. So on those data, Google target the audience or टारगेटेड रीजन तो बहुत आसान है. आप जहाँ से सर्च कर रहे हो वो आपका रीजन है. अगर आप मतलब वो सर्वर से कनेक्ट करेगा या जैसे प्रोफाइल आपके आईपी से आसानी से पता लग जाता है. व्हाट इज माय आईपी एड्रेस से अगर आप देखोगे तो दैट विल लेट यू नो कि आप कहाँ पर हो. ओके फाइन. बहुत आसान है. हाँ, इट इज वेरी सिंपल, राइट. तो वो रीजन तो हो गया, राइट. और जो ऑडियंस में कई सारी चीजें है वो आपकी आप समझ लो कि आप जितनी चीज ऑनलाइन कर रहे हो ना वो सारी चीज ट्रैक होती है और सारे डेटा एनोनिमसली वो लोग लेते हैं. और आपसे वो जब आप नया फोन खरीदते हो या नया ब्राउजर इंस्टॉल करते हो या कुछ भी चीज करते हो ना, वो लोग उसमें एक ऑप्शन ही होता है कि वुड यू लाइक टू सेंड योर डेटा फॉर द डेवलपमेंट पर्पस और व्हाटएवर एनोनिमसली. उसमें लोग वो आपसे टिक करवा लेते हैं. वो ऑप्शनल होता है, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ पढ़े. तो 80% टर्म्स एंड कंडीशन में वो लोग करवा देते हैं आपसे, राइट. तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप सब डेटा उनको दे रहे हो. ठीक है. तो ये बेनिफिट्स ऑफ सो बेनिफिट्स ऑफ पेड मार्केटिंग. तो ये सारे पेड मार्केटिंग और ये पिलर है. ये ऑडियंस, एड्स, डे एंड टाइम, डेली बजट एंड डेमोग्राफी, ये फंडामेंटल पिलर है. ये चीज आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करो आपको क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए. ये 5 चीज अगर आपको पता है, राइट, तो आप उनका, और यही 5 चीज आपको बेसिकली ऑन अ रेगुलर इंटरवल मेजर भी करनी पड़ेगी कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट. सो बेसिकली अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, राइट, सो प्लेटफॉर्म टाइप्स ऑफ यस, ये टाइप आ गया अभी, टाइप्स ऑफ पेड मार्केटिंग, राइट. सो टाइप्स ऑफ पेड मार्केटिंग कौन कौन से हैं? तो इसमें बेसिकली अगर आप बोलो तो जो टाइप्स है उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है. गूगल ने अलग तरीके से डिफाइन किया है, फेसबुक ने, लिंक्डइन ने, ट्विटर ने अलग तरीके से, लेकिन हम उसको थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं. पहला है टाइप्स ऑफ पेड मार्केटिंग में ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस. ब्रांडिंग प्लस अवेयरनेस पहला जो गोल है. टाइप्स या अगर आपका ब्रांडिंग प्लस अवेयरनेस, राइट. अगर आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी सबसे पहले, राइट. अगर आपने क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसी चीज लॉन्च की है कि जिससे आपकी पूरी ऑफिस आप खुद सैनिटाइज कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले लोगों को वीडियो के जरिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. ये एक मशीन है, बहुत आसान है. यू जस्ट हैव टू पुट दिस लिक्विड, और वो लिक्विड भी अवेलेबल होगा उसके साथ. तो वो आपको सिर्फ स्प्रे कर देना है, और ये प्रिकॉशन के साथ अगर आप करोगे तो 20 मिनट में आप पूरी रूम को या पूरी ऑफिस को सैनिटाइज कर दोगे, राइट. तो ये प्रोडक्ट के लिए आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, राइट, जैसे कोका कोला है, पार्ले है, राइट, पतंजलि है, तो उनको अगर लोगों के दिमाग में बैठे रहना है, राइट, कि अगर ये चीज आई तो सबसे पहले उनका ही नाम आना चाहिए, राइट. जैसे टूथपेस्ट में पहले एक जमाना था कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते थे, कॉलगेट दो ऐसा बोलते, राइट. बिस्किट दो ऐसे नहीं, पार्ले जी दो ऐसा बोल रहे हैं, राइट. तो ये ब्रांड है. उनकी इतनी इम्पैक्ट हमारे दिमाग में बैठ गई है कि वो प्रोडक्ट को ही हम लोग, वो ब्रांड को ही हम लोग प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं, राइट. तो वो केस में अगर आपको लोगों के दिमाग में वो चीज बैठे रखना है, तो यू नीड टू डू द ब्रांडिंग, right. So branding and awareness, that is the goal. Number 2 is consideration. So what I mean by what is the meaning of consideration? The meaning of consideration is if you are actively looking for something,
राइट अगर आप एक्टिवली लुकिंग फॉर समथिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपका प्रेजेंस उसमें दिखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको क्लिक मिले, राइट, तो वो एक कंसिडरेशन है आपके लिए, आपको वो प्रोमिनेंट प्लेस पर आपकी एड दिखे तो वो एक कंसिडरेशन, राइट। तो कंसिडरेशन का एक्सपेक्टेड आउटकम, यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ कि उसका एक्सपेक्टेड आउटकम, ऑब्वियसली उसका नाम है तो वो एक्सपेक्टेड आउटकम उसमें ही होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस है तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस इटसेल्फ इज अ एक्सपेक्टेड आउटकम। तो कंसिडरेशन में यू कैन एक्सपेक्ट विजिट्स और क्लिक्स टेक्निकल टर्म में, राइट। और लास्ट है कन्वर्जन, राइट। सो कन्वर्जन वाला जो पार्ट है उसमें बेसिकली आपको जो लीड मिल रही है या सेल मिल रहा है, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये 3 पार्ट फंडामेंटल है। टाइप्स ऑफ पेड मार्केटिंग में आप कोई भी जगह पर चले जाओ, कोई भी मानी टिकटॉक पर चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, लिंक्डइन पर चले जाओ, ट्विटर पर चले जाओ, ये तीनों के तीनों फंडामेंटल्स आपको मोर और लेस, उन्होंने सिंटेक्स चेंज किया है, टर्मिनोलॉजी चेंज की है, लेकिन उसका क्रक्स यही है, राइट। करेक्ट, उसका क्रक्स, और आगे आगे भी जितना भी आएगा उसमें क्रक्स कभी चेंज नहीं होता है, राइट। फंडामेंटल ऑलवेज रिमेन सेम, राइट। उसमें नए एनहांसमेंट होते हैं या फिर उसमें प्लस माइनस होता है, राइट। तो ये फंडामेंटल्स के ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस करना है तो ये किसके लिए काम का है वो जरूरी है, राइट। इफ यू आर लॉन्चिंग a new product or service which is not which is new in the market, you should go with awareness campaign, right? Correct। इसमें आप और कैसे आप कर सकते हो, if कैसे, तो you can do this campaign with the help of social media platform, right, and Google display, right। सबसे गूगल डिस्प्ले मानी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जो ऐड दिखती है ना, तो वो गूगल डिस्प्ले का पार्ट है। और ब्रांडिंग कब करना है, इफ यू आर ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, to keep your brand at the top of users mind for your category, you should go with category, right? If you are category, you should do branding। सेम आप सेम वे से इसमें भी ब्रांडिंग यही तरीके से कर सकते हो, राइट। सो ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस में ये मामला है। उसके बाद कंसिडरेशन में क्या आएगा, जब आपको लोग ढूंढ रहे हैं तब, सो हाउ यू कैन डू द कंसिडरेशन, you can do the consideration showing banner, you can do the consideration, right, you can do the consideration with the help of sales, Google search, remarketing, right, Google search, remarketing and social media and display। ये किसके लिए करना है ये मैंने नहीं लिखा, तो you should go with consideration as an objective if your product if if the service or product you offer is well known मानी
अगर आप आज बोलो कि भाई मुझे आज से 10 साल पहले बोलते हैं कि एसईओ क्या है, तो वो मुझे अवेयरनेस के केस में करना पड़ता, राइट। आज अवेयरनेस के केस में नहीं करना पड़ता है, वो मेजोरिटी ऑफ द लोगों को एसईओ क्या है वो पता है, राइट। तो वो केस में मुझे कंसिडरेशन में करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, बिफोर 10 years इफ मैं जब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं आज से 10 साल पहले लोग मुझे पूछते थे अराउंड 2010 में कि आप क्या करते हो, तो मैं बोलता था, उस वक्त तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड उतना फेमस नहीं था, वो लोग एसईओ ही बोलते थे कि मैं एसईओ करता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उनको इतना आश्चर्य होता था कि ये क्या करता है, पता नहीं है, राइट। और नंबर 2 की जब वो प्रोनाउंस करते थे एसईओ, तो कभी एसईओ कर देते थे, कभी एसओ ही कर देते थे, या और कुछ कर देता था, राइट। क्योंकि उन लोगों को ये चीज ही नहीं पता है कि ये ऐसा भी है कि इस तरीके से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिफोर 10 years if I would like to do if I would like to run a campaign, run a marketing camp, run SEO campaign. I would like to run SEO campaign. I mean, what I mean by SEO campaign, मुझे SEO as a service के तौर पर लोगों को देना है. I should SEO campaign. I need to go with branding and I need to go with awareness campaign first. But in 2020, I should go with yes, consideration objective, right? And last, conversion. So again, conversion is all about, right, when your audience is actively looking for the product or service you are selling, you should go with conversion. For example, देखो अभी रक्षाबंधन आ रही है, और अगर मुझे राखी बेचनी है तो आई मस्ट हैव टू गो विद कन्वर्जन एज अ गोल, राइट। और कोई गोल इसमें नहीं काम करेगा, राइट। तो दैट इज द थिंग कि भाई वो एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, व्हाई यू आर वेस्टिंग हिज एंड योर टाइम बाय शोकेसिंग with the other things. So you can do this when your audience is actively looking for the product and service you are selling. You should go with the conversion. For example, right, in the August month, if you would like to, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजनल के लिए ही काम का है, ये कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए काम का है जिसमें आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, राइट। Like to sell Rakhi, you should run campaign with this objective, right? Clear? So this is what you have to, you should go with this objective, right? ठीक है, conversion and lead, yes. And आप कैसे कर सकते हो? You can do this, you can do conversion with the help of, ये जो जितनी भी चीज मैंने बोली वो सारी चीज से आप कर सकते हो। राइट, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो वर्क करेगा ना, वो गूगल सर्च और गूगल सर्च एड्स और रीमार्केटिंग, ये दोनों वर्क करेगा सबसे ज्यादा, राइट, करेक्ट। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ पेड एडवर्टाइजमेंट, और ये अभी मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए बारीकी से आपको और कोई जगह पर नहीं करूँगा,
right? Whether it is Facebook, whether it is LinkedIn, or whether it is any other platform available in the world, right? क्योंकि ये चीज आपको जितनी क्लैरिटी बैठ गई और यही दिखेगा आपको वहां पर। उन्होंने नाम शायद हो सकता है कि नेमिंग कन्वेंशन अलग लिए हो, लेकिन उसका गोल यही है, दिस इज द गोल। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपके क्लाइंट ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको जाना है पेड मार्केटिंग से, तो एज अ एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई क्लाइंट को ROI मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि आप 2 महीने के बाद बोलोगे अरे हमने यार ये ट्रायल किया था लेकिन ये नहीं चला, इट इज नॉट अ गुड थिंग। यू आर नॉट गिविंग अ गुड सर्विस और गुड एक्सपीरियंस टू योर क्लाइंट, राइट? तो ये कैसे संभव है? ये पॉसिबल है, राइट? और बहुत इजीली पॉसिबल है इनफैक्ट। तो सबसे पहले अगर मुझे एक भी रुपए पेड एडवर्टाइजमेंट में मैं खर्च करूं जिसमें मेरा गोल कन्वर्जन है, ये ध्यान में रखना। ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस में ये सारे मैट्रिक्स नहीं रहेंगे, KPI नहीं रहने वाले। ये कन्वर्जन में ही KPI रहेगा कि भाई कितना मैंने स्पेंड किया और कितना मुझे प्रॉफिट मिला, राइट? तो ये केस में सबसे पहला है, जो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, वो आपको ध्यान में रहती है, वो है सेलिंग प्राइस। तो आपके क्लाइंट जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कि ये यूरेका फॉप्स का मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइट? यहाँ पर, राइट? तो आप मैं इसलिए ये एग्जांपल दिया क्योंकि आपको समझने में डेमोन्स्ट्रेशन पे आसानी हो जाएगी, दैट इज द गोल, राइट? तो ये यूरेका फॉप्स ये है, राइट? ये है, राइट? ये रिलायंस डिजिटल का है, चलेगा कोई भी होगा, वी डोंट माइंड, राइट? ये आ गया है ना, रिलायंस डिजिटल अभी हो गया है चालू, वेरी गुड। तो पैसे का यस यहाँ, तो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर ये उनके प्राइस है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8,599, 8,599, ठीक है? अभी, राइट? और यहाँ पर मैं लिंक भी रख देता हूँ ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू कंट्रोल K, कंट्रोल V एंड अप्लाई, ठीक है? राइट? अभी हमारी जो परचेज प्राइस है, राइट? मानी हमने जो ये परचेज किया है यूरेका फॉप्स को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मानी अगर हम लोग इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर इसको बेच रहे हैं, तो हमें ये कितने में पड़ता है? तो हमें सपोज 5,000 में पड़ता है या 6,000 में पड़ता है, वो आप ये दोनों चीज, ये सेलिंग प्राइस तो इजीली अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको जो सेल कर रहा है उसको पूछना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट अगर ये बिकता है, अगर ये एक प्रोडक्ट बिकता है तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 3,500 का प्रॉफिट होता है, राइट? यहाँ तक सिंपल 5th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। सपोज मेरा जो कन्वर्जन रेट है, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट है वो है 4%। मानी 100 लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं, राइट? इफ 100 people are visiting this Reliance page, then 4 people used to buy this product, राइट? ये मेरा पास्ट ट्रेंड है। वो कैसे पता लगेगा? इंडस्ट्री बेंचमार्क अगर आप ले लो, राइट? तो इंडस्ट्री बेंचमार्क आप 2 से 3% ले सकते हो, राइट? यू कैन, if you do not know industry benchmark, you can go with ये बहुत, इससे कम है ना तो आप समझ लेना कि वह कुछ गड़बड़ है आपकी वेबसाइट में, राइट? 1 to 2%, 1% से भी जा सकते हो, जितना कम जाओगे उतना सेफ साइड बढ़ जाएगी। तो 1 to 2%, ठीक है? तो ये मैं 4% से करा हूँ, मैं 3% भी कर सकता हूँ, इट इज नॉट एन, लेकिन ये तो एक एग्जांपल है। तो मानी 100 लोग विजिट करते हैं मेरी वेबसाइट पर, तो मुझे कितना सेल होता है? 4 पीस मेरे बिकते हैं, करेक्ट? अगर एक पीस मेरा बिकता है तो मुझे 3,599 का फायदा होता है।
तो 4 पीस बिके तो कितना फायदा हुआ? 14,396, करेक्ट। यानी एवरी 100 क्लिक, जब 100 क्लिक मेरी वेबसाइट पर आती है तो मुझे ऑन एन एवरेज 14,000 का फायदा होता है। यस और नो? क्लियर? तो एक क्लिक पर कितना फायदा हुआ? डिवाइडेड बाय 100, वेरी सिंपल। तो एक क्लिक पर मुझे 143.96 का फायदा है, करेक्ट। यानी अगर मैं और एंगल से इसको देखने के लिए जाऊं तो मुझे इससे ज्यादा गूगल को नहीं देने हैं एज अ सीपीसी। अगर मैंने इससे ज्यादा दिए तो क्या होगा? मेरा आरओआई नेगेटिव चला जाएगा। यस, क्यों? क्योंकि 100 क्लिक पर मुझे सिर्फ 14,396 का फायदा होता है, और अगर मैंने 143.96 के ज्यादा दिया तो मेरा खर्चा मेरे रेवेन्यू से बढ़ जाएगा, मेरे प्रॉफिट से बढ़ जाएगा, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट से बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट से अगर वो बढ़ गया तो मेरा पूरा कैंपेन का आरओआई नेगेटिव चला जाएगा। इसमें तो अभी हमने उसकी तो कॉस्ट भी नहीं गिनी। किसकी? जो एजेंसी काम कर रही है उसकी भी कॉस्ट गिननी चाहिए इसमें, राइट। और आपके मिसलेनियस कॉस्ट भी नहीं गिने, तो वो दोनों ऐड करोगे ना तो ये 100 तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपकी एक्चुअल सीपीसी, लेकिन मैं ये सारी चीज बोलूंगा ना तो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीजों को अभी इग्नोर करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। तो 143.96 से ज्यादा मुझे, इससे ज्यादा हमें गूगल पर पे नहीं करना है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट you should give to the Google for every click when someone for a single click for the ad you are showing on the Google. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चंस एडवर्ड में 3 या 4 आते हैं एड्स की एग्जाम में, राइट। तो ये आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लेना। ओके, उसके बाद वन क्लिक कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन माने एक कन्वर्जन लाने के लिए हमें कितना पैसा स्पेंड करना पड़ता है, राइट। तो मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहिए? तो अभी हमने क्लिक पर किया था, अभी हम लोग कन्वर्जन पर करेंगे, और कुछ है नहीं उसमें, राइट। इसमें क्या था कि एक क्लिक जब आपकी वेबसाइट को मिले, जब आपकी एड पर एक बंदा क्लिक करे तो आप कितनी मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड करना चाहते हो? तो भाई ये है, एक कन्वर्जन हो तो आप मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहते हो? तो कुछ नहीं करना है, जो टोटल प्रॉफिट है 14,396 उसको 4 से डिवाइड कर लेना है। माने एक कन्वर्जन पर मैं 3,000, ये कुछ है नहीं। कॉस्ट पर एक्विजिशन माने आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, वही आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन, और कुछ है नहीं। कि भाई जब एक मेरा कन्वर्ट होता है तो मुझे इतना प्रॉफिट होता है तो मैं उतना ही, मैक्सिमम उतना ही स्पेंड करूंगा, उससे ज्यादा मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन कैसे हो सकता है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उससे ज्यादा जैसे ही मैं स्पेंड करूंगा, राइट, आई विल बी इन लॉस। सिंपल, राइट। આપણે નથી કહેતા ઘણી વાર કે ભાઈ આ મારી પડતર કિંમત છે, તારે લેવું હોય તો લે, ના લેવું હોય તો ના લે, राइट। तो ये इससे ज्यादा हम लोग नहीं स्पेंड कर सकते मार्केटिंग में, राइट। क्लियर? उसके बाद, राइट, सपोज ये जो चीज हम लोग बेच रहे हैं ना, उसमें समझो कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक आती है 50 रुपीज ओनली। भले ही हमने 143 यहाँ पर, ये तो हमारी मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, ये अपर लिमिट है। लेकिन एक्चुअल आती है 50 रुपए। मानी मुझे एक क्लिक, जब कोई बंदा यूरेका फॉक्स से सर्च करता है वैक्यूम क्लीनर से, सपोज ये जब बंदा, मैं आपको यस, ये जो सर्च करता है और जो ये मैंने क्लिक की ना, ये जो मैंने क्लिक की ना, वो आप समझ लो कि 50 रुपए में मुझे पड़ती है, राइट। तो ये सिनारियो है, इसका स्पेलिंग में सही कर दूंगा, राइट। इतने में ही पड़ती है मुझे एक क्लिक। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 143 माइनस दिस, वेरी सिंपल, क्योंकि ये मेरा टोटल प्रॉफिट है पर क्लिक, ये मेरा एक क्लिक का ये प्रॉफिट है मेरा। तो मैंने 143 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक क्लिक पर मुझे कितनी प्रॉफिट मिला? 93.96। मानी आरओआई मुझे कितना मिला? 187। तो उसका क्या मतलब हुआ?
जब 100 रुपए में स्पेंड करता हूं तो मुझे 187.92 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सिंपल। 50 रुपए में 93 रुपीज का प्रॉफिट, तो 100 पर कितना? दिस इज दैट। तो मुझे 187.92 मानिए सबसे बढ़िया बिजनेस है, सबसे बढ़िया बिजनेस है। बैंक का रेट क्या चल रहा है अभी सेविंग अकाउंट में या एफडी में? क्या चल रहा है? 4 to 5% और 4%। 4%, राइट? 4.5 सीनियर सिटीजन हसे तो 2% વધારે મળશે, राइट? और ये कितना मिल रहा है आपको? 187.92, राइट? तो जो फंडिंग होता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो क्यों नई प्रोडक्ट में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं? ये रीजन है इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, समझे आप? क्योंकि अगर वही पैसे वो लोग बैंक में देंगे या और कोई जगह पर लगाएंगे तो उनको प्रॉफिट मिलेगा हार्डली मैक्सिमम, राइट? आप SIP कर लो, म्यूचुअल फंड में जा लो या कोई भी जगह पर जा लो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 9 to 10%, राइट? तो लेकिन अगर आप ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट में फंडिंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, राइट? So that is the reason they are investing in the new invention, right? जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें लोग ये रीजन से इन्वेस्ट करते हैं, समझे आप? जो और कोई भी जगह से नहीं मिलता। ओके, तो ये है। तो ये हमने जो डिस्कस किया ना पूरा, वो प्रोडक्ट का सिनेरियो डिस्कस किया कि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वेदर इट इज अमेजोन, वेदर इट इज फ्लिपकार्ट, अगर आप अमेजोन पर सेल कर रहे हो मार्केट प्लेस पे, राइट? तो आपकी सेलिंग प्राइस है 7,499, राइट? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 4,000, राइट? आपका नेट प्रॉफिट है दिस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन वेरी सिंपल। फ्लिपकार्ट का कमीशन है 20%, तो 1,499 और शिपिंग चार्ज है आपका 200 रुपए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,790। ये केस में आप कैसे कर सकते हो? ये जो है ना फ्लिपकार्ट का कमीशन और ये दोनों आपकी फिक्स कॉस्ट, ये आपको गिन लेना है। ये अगर आपके प्रॉफिट से ज्यादा है, ये दोनों का सम अगर आपके प्रॉफिट से ज्यादा है तो आपको ये सेल नहीं करना चाहिए, और आपको 100 पीस पर 5 पीस रिटर्न देने पड़ेंगे, वो भी कंसीडर कर लेना। रिटर्न आएंगे, सॉरी रिटर्न आएंगे, तो ये 5 पीस में और ये इसमें और 1000 ऐड कर देना है, समझ रहे हो आप? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो द पॉइंट इज दैट कि वेदर यू आर डूइंग दिस ऑन मार्केट प्लेस और वेदर यू आर डूइंग ऑन द गूगल, आप एक भी रुपए, इसकी ब्यूटी देखो, मैंने एक भी रुपए अभी गूगल में स्पेंड नहीं किए और मैंने मेरे पास ये नंबर है कि इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता गूगल को। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, राइट? आई कैन पे टू द गूगल टू मेंटेन माय पॉजिटिव ROI और टू गेट द पॉजिटिव ROI, करेक्ट? या फिर एक लाइन में टू गेट द ROI। ये ब्यूटी है डिजिटल मार्केटिंग की, ये ब्यूटी है ऑनलाइन पेड मार्केटिंग। क्यों? और कोई बिजनेस में आप करेंगे, जैसे आप दिव्य भास्कर में ऐड दो, उससे पहले ये कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? आप कोई भी जगह पर ऐड दो, यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस विद दिस प्रिसाइज, ये प्रिसाइजनेस इसमें बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, because of बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस ये प्रिसाइजनेस आपको मिलती है। आप दिव्य भास्कर में ऐड दो या दुनिया के कोई भी न्यूज़पेपर में ऐड दो, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जिसका एज ग्रुप ये है वही मेरी ऐड देख सकता है, राइट? मेरी ऐड, हाँ डे डिसाइड कर सकते हो आप कि मुझे संडे देना है या सैटरडे देना है, लेकिन यही टाइम पर वो पढ़े वो भी आप नहीं कर सकते। डेली बजट भी आप नहीं कर सकते, उनकी जो ऐड का चार्ज है वही देना पड़ेगा आपको, राइट? तो ये सारी चीज आप इसमें कर सकते हो। दैट इज द रीजन द फ्यूचर इज ब्राइट एंड यू कैन एक्सपेक्ट द वेरी गुड ROI विद द हेल्प ऑफ दिस। अभी सर्विस का सिनेरियो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सर्विस का सिनेरियो अगर हम देखें तो समझ लो कि 90,000 की ट्रेनिंग है, चलो हम लोग ट्रेनिंग का ही सिनेरियो ले लेते हैं। 19,000 इज द ट्रेनिंग फी सपोज, राइट? तो 5,000 है वो सपोज मेरी कॉस्ट है, राइट? मैंने जो एम्प्लॉय को रखा है, ये जूम है और जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हाटएवर, राइट? उसके बाद तो उसका एक अगर बंदा कन्वर्ट होता है ऑन एन एवरेज तो वो 14,000 रुपीज का मुझे सपोज प्रॉफिट होता है। अभी मेरा लीड रेट है वो है 5%। उसका क्या मतलब हुआ? 100 लोग अगर मेरी ऐड को देखते हैं या मेरी वेबसाइट ऐड को देखते हैं, क्योंकि अभी हम पेड कर रहे हैं तो ऐड का ही डिस्कस करेंगे,
100 लोग अगर मेरी ऐड देखते हैं तो 5 लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। समझना, यही पर ई कॉमर्स और सर्विस में डिफरेंट हो जाएगा। 5 लोग मुझे क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। वो लोग मुझे पैसे नहीं देते, वो लोग मेरी ट्रेनिंग नहीं लेते, उसमें से 40% लोग मेरी ट्रेनिंग लेते हैं। समझ रहे हो, 5% का 40% है और 100 का 40% नहीं है। मानी 100 लोगों में से कितने हुए, 2 लोग हुए, 5 का 40%। समझे आप, राइट? मैंने यहां पर लिखा है, राइट, दिस इज आउट ऑफ 100 यूजर। 100 में से 5 देते हैं और 5 में से 40 मानी 2 देते हैं। क्लियर? 100 में 100 का 40% तो 5 में कितना, तो 2, राइट? फेज 2, right, that is out of 100 users, 5 users on an average gives us a lead, and out of 5 users 40% users take our service, that is 2 users take our service. तो 100 से 2 हुए, मानी 100 यूजर से, सॉरी हाँ 100 क्लिक पर 100 अगर मेरी एड पर 100 लोग क्लिक करते हैं तो मुझे ऑन एन एवरेज 28,000 रुपीज का फायदा होता है। मानी एक क्लिक पर कितना फायदा हुआ, 280। मानी दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट I can give to the Google for the CPC. Clear? Right? तो इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, एक लीड रेट और लीड के बाद वो लीड में से कितनी कन्वर्ट हुई वो पार्ट। ई कॉमर्स में एक ही फेज रहेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, करेक्ट? સર એક વસ્તુ, આ જે લીડ રેટમાં તમે લખ્યું છે ને, this thing you percentage of the lead rate you have to assume, so we can Yes. get that from Google Analytics also, right? पर आप पहली बार For करोगे pit. तो कैसे एनालिसिस मिलेगा? Right. वो सिनेरियो में मैंने लिखा है कि बेंचमार्क को कंसीडर करना है, Okay. राइट? ये तो मैं 2 चीज लिख देता हूँ, इफ यू डोंट नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, और you don't have past data, राइट? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग, करेक्ट? तो ये है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको सीपीसी कैसे कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने चीज बताई ना, ये तो मैंने आपको पूरा बोल सकते हो कि इसको वो क्या बोलते हैं, माइक्रो लेवल का एनालाइज करके बताया। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ढूंढना है ना तो बहुत आसान है इसकी फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट पर सेल, एवरेज प्रॉफिट पर सेल मानिए मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। तो हमारा कन्वर्जन रेट, दिस इज एवरेज प्रॉफिट पर सेल मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट, राइट? ये हो और मल्टीप्लाई बाय 0.9। सो ये जो 0.9 है वो क्यों रखा है, राइट? एक्चुअली 100 रखना चाहिए ना। आई मीन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मानिए आपका सीपीसी, और कुछ है नहीं इसमें। तो 0.9 0.1 उन्होंने क्यों अपने पास, 10% क्यों अपने पास रखा? आई मीन 10% सीपीसी क्यों कम कर दी? वो इसलिए कम कर दी, मिसलेनियस कॉस्ट है। आज अगर आप जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पता है कि कल ही ऑफिस से मेरे फोन आया था कि भाई सर आपका एसी नहीं, आई मीन एसी अभी नहीं चल रहा है, राइट? तो एसी की कॉस्ट गिनो, रेंट गिनो, फैन नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रही है, इंटरनेट में कोई गड़बड़ी आई, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो होती है, जो मेंटेनेंस में होती है। इसलिए आपको जितने पैसे प्रॉफिट में मिल रहे हैं वो सभी को आप प्रॉफिट के तौर पर नहीं कंसीडर कर सकते। 10% 15% आपको मिसलेनियस कॉस्ट में कंसीडर करना है, इसलिए यहाँ पर 0.9 लिखा। क्लियर, राइट? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका एडवर्ड में, एक क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट? करेक्ट? तो इसकी वजह से जो ऊपर जो हमने तय किया ना उसमें आपको 0.9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, राइट? ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है C4 मानी ये, C4 मानी रेफरेंस है, C मानी कॉलम, 4 मानी रो, तो दोनों का जब इंटरसेक्ट होता है तो वो सेल हो जाता है। तो 3599 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट दैट इज 4% एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय 0.9। हमने यहाँ पर अगर 100 ले लिया होता तो ऊपर जो नंबर लिखा है वो मिल जाता, लेकिन हमने यहाँ पर 10% मिसलेनियस कॉस्ट को गिन लिया है, इसलिए 0.9 से मल्टीप्लाई किया। तो 143 अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा तो 145 143 मिलेगा, और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 129। क्लियर फ्रेंड्स?
और सर्विस में भी उस तरीके से आप कर सकते हो। सर्विस के केस में क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट पर सेल, जैसे कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट पर सेल क्या था, ये था, राइट, 14,000। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय विजिटर लीड रेट, तो विजिटर लीड रेट क्या है, 5%। उसके बाद क्या था, लीड कन्वर्जन रेट, इसमें दो रेट रहेगा। लीड कन्वर्जन रेट क्या है, 4%, ये विजिटर लीड रेट है, और उसके बाद जो लीड मिली उसका कन्वर्जन रेट है। तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो यहाँ पर जो 280 मिला है उसको अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा 280 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 252, जो मुझे यहाँ पर मिला है। क्लियर फ्रेंड? तो ये दो फॉर्मूला से आप इतनी मेहनत करे बगैर भी सीधा सीधा सीपीसी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपके पास ये दो मैट्रिक्स होने चाहिए, माने एक सेल में प्रॉफिट कितना आता है और कन्वर्जन रेट क्या है। कन्वर्जन रेट अगर नहीं है तो यू कैन कंसीडर इंडस्ट्री बेंचमार्क, या फिर आपके पास पास्ट डेटा है तो उसको कंसीडर करके कर सकते हो। क्लियर? अभी आरओआई कैसे गिनना है, आरओआई का भी क्वेश्चन आएगा गूगल एड्स में, एडवांस सर्च की एग्जाम में मिलेगा आपको, राइट। दैट विल बी अराउंड, आप बोल सकते हो एक या दो क्वेश्चन आरओआई के रहेंगे, राइट। सो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको टोटल मिला है माइनस मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट में से आप मार्केटिंग कॉस्ट निकालोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट को आपको मार्केटिंग कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, दोनों तरीके से लोग बोलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपका नेगेटिव है तो आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उससे आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, वेरी सिंपल, राइट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल फंडा है कि भाई आप 1 रुपये जब स्पेंड कर रहे हो तो आपको कितना फायदा होता है, राइट। 160% मानी जब मैं 1 रुपये स्पेंड कर रहा हूं तो मुझे 1.60 रुपीज का फायदा होता है, राइट। क्लियर? 1.6 दो रुपया नो फायदो था, जયારે હું 1 रुपये स्पेंड करूं तो ત્યારે। क्लियर? ओके, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, तो ये आप देख सकते हो और कुछ नहीं। और अभी आता है उसमें कि गूगल कैसे ऐड पोजीशन को कैसे तय करता है, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये जो पूरी गूगल ने जो पूरा एल्गोरिदम बनाया है ना, वो पूरा सिर्फ पैसों के बेस पर नहीं है। अगर कोई बोले, अगर ऑडी बोले कि भाई मुझे 10,000 रुपीज स्पेंड करने हैं, तुम मेरी एड सबसे पहले दिखाओ, गूगल बोल रहा है हम लोग सिर्फ पैसे से नहीं काम करते हैं, हम लोग दो चीज क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं। एक है आप क्या पे करना चाहते हो, और दूसरा आपकी क्वालिटी क्या है, व्हाट इज योर क्वालिटी। क्वालिटी मानी गाड़ी की क्वालिटी नहीं, एड की क्वालिटी, राइट। तो एड की क्वालिटी में वो लोग क्या कंसिडर करते हैं, ये चीज कंसिडर करते हैं। सबसे पहले सीटीआर। तो मैं आपको बहुत इजीली आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो लोग कंसिडर करते हैं। ऐसे सबसे पहले जब आप ये चीज को सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है, जो सबसे पहले एड में दिखता है वो है आपकी एड की कॉपी। क्लियर? तो जो एड की कॉपी दिखती है उसको उन्होंने दिया है क्वालिटी स्कोर में एक पैरामीटर के तौर पर कंसीडर किया है, और उसका नाम लिया है एड रिलेवेंसी। माने मैंने जो सर्च किया वो अगर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है तो वो गूगल एक एड रिलेवेंसी के तौर पर कंसीडर करता है। क्लियर? दूसरा कौन सा चीज है, मानी मैंने यहाँ पर यूरेका फॉक्स वैक्यूम क्लीनर से सर्च किया तो यहाँ पर दिखा यूरेका फॉक्स वैक्यूम क्लीनर, यूरेका ये नहीं है, यूरेका वैक्यूम क्लीनर पहले लिखा है, वैक्यूम क्लीनर यूरेका, राइट, लेकिन इसने सीधा लिखा है यूरेका फॉक्स वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो ये एड रिलेवेंसी सबसे पहले चेक करता है। दूसरा चेक करता है एड एक्सटेंशन। तो कई बार क्या होता है कि आप जो ऐड बनाते हो ना उसमें आप नीचे ऐड कर सकते हो, राइट। ये तो मर्चेंट ऐड है, राइट। तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अगर ऑफर आपने निकाली है तो वो दिखा सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर और कोई ऐड नहीं है, लेकिन अगर आप डेंटिस्ट,
अभी मैं आपको एड एक्सटेंशन दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट। प्रॉपर्टी 3 BHK इसमें तो मिलेगा। ये रही एड। तो ये जो एड मिला उसमें ये जो है ना, ये एक्सटेंशन है ऐड का। मानी ऐड तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग दिखा रहे हैं। तो फायदा क्या होता है, जितना ऐड एक्सटेंशन में क्या आता है, कॉल एक्सटेंशन आता है, वो हम लोग डेडिकेटेड जब ऐड बनाएंगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। तो जो ऐड एक्सटेंशन है, वो ऐड एक्सटेंशन, ये लिंक एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, मैसेज एक्सटेंशन है, राइट। ये सारे एक्सटेंशन आते हैं ऐड के ऊपर, टॉप अप है ये ऐड के। इससे क्या होता है, यूजर की क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसने इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इसने इतनी तो दी है, समझ रहे हो आप, लेकिन उससे ज्यादा इसने ये भी दी। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यूजर के पास है, उतनी ज्यादा वो आपके साथ इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। क्लियर। तो जो तीसरा पैरामीटर गूगल कंसीडर करता है वो है एड एक्सटेंशन, राइट। और जो लास्ट है, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐड पर और जहां पर मैं पहुंचा, उसकी रिलेवेंसी क्या है, मानी लैंडिंग पेज रिलेवेंसी, जो हमने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में सीखा था वो, राइट। वही है लैंडिंग पेज रिलेवेंसी में, और कुछ नहीं। क्लियर फ्रेंड। तो द पॉइंट इज दैट कि ये चार चीज, CTR माने कितने लोगों ने आपकी एड को देखा और कितने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, राइट। तो वो एड की रिलेवेंसी का ही पार्ट है, राइट। तो एड रिलेवेंसी, सबसे पहले एड दिखती है तो एड रिलेवेंसी, उसके बाद क्या दिखता है, एड एक्सटेंशन, तीसरा CTR, फोर्थ लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। ये चारों चीजें गूगल 1 से 10 के पैरामीटर के बेसिस पर क्वालिटी स्कोर पर कंसीडर करता है। 1 इज द लोएस्ट क्वालिटी स्कोर, 10 इज द हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर। क्लियर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट। अभी वो कैसे डिसाइड करता है, ऑक्शन होता है और कैसे किसको पहले पर रखना है, किसको दूसरे पर रखना है, वो कैसे डिसाइड करता है, वो इस तरीके से डिसाइड करता है। इसका भी क्वेश्चन होगा, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे गूगल के एग्जाम में। ये पूरा जो लेक्चर है ना, उसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें सपोज 3 वेबसाइट है जो अपनी ऐड दिखाना चाहती है, कौन से कीवर्ड से, वेब डिजाइन इंडिया से, पहली अलग बलग शाउटराइट, तीसरी हिडन ब्रेन। अभी अलग मलग जब कोई ऐड क्लिक करे तो वो मैक्सिमम कितना पैसे स्पेंड करना चाहता है, तो है 19 INR। शाउटनाई कितना स्पेंड करना चाहता है, 20 INR, 20 INR। और हिडन ब्रेन कितना करना चाहता है, 15 INR। लेकिन दोनों का क्वालिटी स्कोर अलग अलग है। अलग मलग का है 6, शाउटनाई का है 5, हिडन ब्रेन का 8। तो अभी एड रैंक क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है ना, उसको एड रैंक कहा जाता है, एड रैंक, राइट। तो एड रैंक है 19 मल्टीप्लाई बाय 6, अलग मलग का। 19 इज द CPC, QS मानी क्वालिटी स्कोर इज 6, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा 114। शाउटनाइक का होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 100, और हिडन ब्रेन का होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 120। अभी सबसे पैसे कौन ज्यादा स्पेंड कर रहा है, शाउटनाइक। और सबसे एड किसकी सबसे पहले आएगी, हिडन ब्रेन। क्यों, क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा है। क्वालिटी स्कोर ज्यादा है मानी उसकी एड रिलेवेंसी, एड एक्सटेंशन, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, ये दोनों वेबसाइट से बेहतर है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये गूगल कंसीडर करता है। इवन दो यू आर, आई एम पेइंग हाईएस्ट टू द गूगल, माय एड विल शो at 3rd position, right, because my quality score is low or my ad rank is lowest among the priors या others. Clear friend, you are getting? ठीक है। तो ये तरीके से गूगल ऑक्शन में, राइट, ये मैंने 3 का एग्जांपल दिया है। ऐसे जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं वो सबका होता है, राइट। जितने भी लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ये सबके लिए होता है, राइट। उसकी बिड मल्टीप्लाई बाय
उनका क्वालिटी स्कोर, राइट। और ये क्वालिटी स्कोर आपको हर एक कीवर्ड के बाजू में एड्स में मिलेगा, राइट। जो अब हम लोग ये इंटरफेस में एंटर होंगे, आई विल लेट यू नो हाउ टू फाइंड इट, ठीक है। क्लियर फ्रेंड? ओके। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज क्या है? आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको 3 प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए इस तरीके से, राइट, टोटल अभी हियर और देयर तो है नहीं, अभी वहां पर ही एट योर प्लेस ही है सब कुछ। तो आपको टोटल 5 प्रोडक्ट के लिए ये ढूंढ कर लाना है, राइट। ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। पीपीसी क्वेश्चनर, तो जैसे हम लोग एसईओ में जिस तरीके से क्लाइंट से डिटेल्स लेते थे, उसी तरीके से क्लाइंट से डिटेल्स सबसे पहले ले लेनी है, और वो डिटेल्स मिल जाए उसी के बाद आपको उनका काम शुरू करना है, ठीक है, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। वरना क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा अरे मैं तो आऊँगी तू ना तू, राइट, मुझे तो ये प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं कर रही है ये सारे, और इतने इतने खतरनाक क्लाइंट मिलेंगे कि आपको ये सारा सिखा देंगे, राइट। तो ये चीज आपको जानना है। उसके बाद है एडवर्ड्स इंटरफेस। एडवर्ड्स का इंटरफेस कैसा है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एडवर्ड्स, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे टॉप लेवल पर होता है एड्स का अकाउंट, राइट। अकाउंट जो आपका जीमेल आईडी है ना, उससे आपको जो एड अकाउंट बनाया है वो है। उसके नीचे आता है कैंपेन। कैंपेन मानिए आपकी वेबसाइट। आपको लेमन लैंग्वेज में अगर अंडरस्टैंड करना है ना, तो ये ट्रेनिंग इन एसईओ है और ये शाउट एंड आई के। उसके नीचे आता है उसके एड ग्रुप मानी उसकी सर्विसेज, जैसे कि ट्रेनिंग में एसईओ ट्रेनिंग, पीपीसी ट्रेनिंग, और शाउट एंड आइक में रेपुटेशन मैनेजमेंट सर्विस, एसईओ सर्विस। समझ रहे हो आप? मानी एड ग्रुप मानी आपका सर्विस का पेज, और उसके नीचे आपके कीवर्ड, जैसे कि एसईओ कोर्स किसी को करना है, एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद, एसईओ ट्रेनिंग इन अहमदाबाद, एसईओ इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, बेस्ट एसईओ कोर्स इन अहमदाबाद, ये सारे कीवर्ड और ऐड जो हम दिखाना चाहते हैं वो। क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टॉप पर आपका अकाउंट, उसके नीचे आपकी वेबसाइट कैंपेन के तौर पर, उसके नीचे आपके पेजेस एड ग्रुप के तौर पर, मानिए आपकी सर्विसेज एड ग्रुप के तौर पर, और उसके नीचे वो पेज के लिए आपको जो कीवर्ड पर ऐड दिखानी है या जो एड कॉपीज दिखानी है वो आएंगे ये इसके ऊपर। क्लियर फ्रेंड्स? સર આમાં કેમ્પેન નું એડ 1A and 1B કેમ છે? એટલે one campaign it's not equal to one ad? તમારી એક વેબસાઇટમાં એક જ સર્વિસ હોય? ના, but so campaign display કરશે 2 pages of my website. ટુ In પેજીસ short, નહીં, બે એડ ગ્રુપ કરશે base service, yeah. તમારે। Landing page. હા, જેટલી સર્વિસ કરવી હશે એ કરી શકશો એડ ગ્રુપ કેમ્પેન ની નીચે। એટલા માટે એ લોકોએ મલ્ટીપલ એડ ગ્રુપ રાખેલા છે। Okay. दैट इज द रीजन। और आप वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको कोई चीज में क्लैरिटी दिलाना चाहता हूँ, कोई चीज में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हो सके उतना जो बेस्ट सिनारियो होता है ना वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो हाउ टू क्रिएट कैंपेन फॉर योर वेबसाइट। आप कैंपेन के वेब कैसे क्रिएट करोगे, तो मैंने तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन दे दिया, अभी फिर से मैं दे रहा हूँ। सपोज मेरी वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है मेरा, राइट। तो टीवी के लिए मैं एक एड ग्रुप क्रिएट करूंगा, कंप्यूटर के लिए एक एड ग्रुप क्रिएट करूंगा, और एसेसरीज के लिए एक एड क्रिएट करूंगा। 3 जो मेरी कैटेगरी है उसके लिए, या 3 प्रोडक्ट है उसके लिए। और टीवी में फिर ऐड करूंगा मैं एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, लैपटॉप, डेस्कटॉप और कीबोर्ड, माउस, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, और उसमें एक आगे आता है एमसीसी अकाउंट। एमसीसी अकाउंट क्या है बेसिकली, तो वो मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एमसीसी अकाउंट मानी जो एजेंसीज है डिजिटल मार्केटिंग, जैसे हम लोग हैं, राइट। तो उनको क्या होता है कि भाई वो लोग
एक या दो अकाउंट नहीं हैंडल करते हैं, वो लोग मल्टीपल अकाउंट हैंडल करते हैं। तो वो केस में यस दे आर हैंडलिंग मल्टीपल अकाउंट। तो वो केस में अगर राइट समझ रहे हो, वो केस में अगर मेरे पास 10 क्लाइंट है पीपीसी के, तो मुझे 10 बार अलग अलग अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। यस करेक्ट, ये 10 बार लॉगिन होना पड़ेगा, विच इज अ टीडियस प्रोसेस। और वो 10 लॉगिन मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्टोर करने पड़ेंगे, और कई बार क्लाइंट ना दे, वैसा भी हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन गूगल ने ये निकाला है कि भाई आपको 10 की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको एक टॉप लेवल का एमसीसी अकाउंट बनाकर, एमसीसी का फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है, वो आप देखें। तो उससे क्या होगा, मैं मल्टीपल अकाउंट को मेरे अकाउंट में कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा ये एमसीसी अकाउंट है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। सर मुझे एक बार वो इमेज वापस देखनी है, इसके पहले जो था ना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का टीवी हाँ और वो वो है जो अवेलेबल, एड स्ट्रक्चर। वो उसमें आपको यहाँ पर ये स्प्रेडशीट का एक्सेस दूंगा ना मैं, अच्छा तो यू विल बी एबल टू यस यस, ये सारी चीज उसमें ही है, तो यू विल बी एबल टू। ठीक है। तो यहाँ से आपको यस, तो ये सारे क्लाइंट है जिसका हम लोग पेड कैंपेन चलाते हैं, ये सारे क्लाइंट हैं राइट। तो अभी आप समझो कि अगर ये क्लाइंट को हम लोग इंडिविजुअल देखने के लिए जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम, राइट करेक्ट। सो दैट इज द रीजन कि ये एमसीसी, ये हमारा एमसीसी अकाउंट है। सो एमसीसी अकाउंट का फायदा क्या है, आप एक ही लोकेशन से मल्टीपल क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल कर सकते हो, और आपको ये बेच भी मिल सकता है राइट। तो मैं ये इसमें बाद में जाऊंगा। तो सबसे पहले एमसीसी अकाउंट, उसके नीचे आपका अकाउंट, उसके नीचे आपका कैंपेन, उसके नीचे आपकी सर्विसेज मानी एड ग्रुप, कैंपेन मानी वेबसाइट। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो आपको और आसानी हो जाएगी। सर्विसेज क्लियर राइट, और उसके नीचे आपके एड ग्रुप, उसके नीचे आपकी कीवर्ड, उसके नीचे आपकी एड। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, और यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर फिर से दिखाया है। ठीक है, अभी एमसीसी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा जिस तरीके से आप नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करते हो ना, उसी तरीके से आप एमसीसी अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो राइट। और अकाउंट जब आप यस, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप पहली बार ये क्रिएट कर रहे हो ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि 2000 INR की क्रेडिट गूगल देता है राइट। ये 2000 INR की क्रेडिट देता है, वो आपको लेनी है। आप गूगल पर सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा राइट। और लेकिन उसकी क्या कंडीशन है, एक तो आपका जो अकाउंट है ना वो 1 वीक से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मानिए मैंने आज सिखाया और आपके ईमेल आईडी से आपने यहाँ पर आपका गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर दिया समझो, लेकिन आपने ऐड चालू की नेक्स्ट वीक, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। मानी जब आपको ये चालू करना है ना ऐड, तब भी आपको ये अकाउंट बनाना है। नंबर 2, ये बहुत इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। सपोज मैंने जो अकाउंट बनाया ना वो यूएस के क्लाइंट के लिए बनाया है, और मेरा जो अकाउंट है ना उसमें मैंने करेंसी रखी है ना, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। मेरी जो मैंने जो क्रेडिट ली ना वो INR से ली है, en.in से ली। तो जो कंट्री में आप ऐड चलाना है या जो करेंसी में आप पेमेंट करने वाले हो, वही कंट्री का आपको ये गूगल एड्स ओपन करना पड़ेगा
तो ही आपको क्रेडिट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सपोज मुझे यूके में करना है तो गूगल एड्स यूके से सर्च करना पड़ेगा, राइट। और एक मिनट, ये यहाँ पर जाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर आ गया en-_uk। क्यों ये करना पड़ेगा? ये इसलिए करना पड़ेगा वरना जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगी, राइट। आपकी टारगेटेड रीजन और आपकी करेंसी दोनों के साथ मैच होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये ध्यान में रखना है। इंडिया है तो इंडिया का करोगे तो मिलेगा, एक ही बार ये क्रेडिट मिलेगी एक अकाउंट पर, राइट। पहले लोग इसमें बहुत स्पाम किया है लोगों ने, राइट। स्पाम तो नहीं बोल सकते, बहुत जुगाड़ किया है, राइट। एक अकाउंट पर एक ही बार मिलेगी और मैक्सिमम 2000 मिलेगी। लेकिन अगर आप एजेंसी से अगर आप लेते हो ना तो कई बार वो लोग ज्यादा भी देते हैं। एजेंसी मानी जैसे हम लोग गूगल पार्टनर है, राइट। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यू विल फाइंड दैट वी आर गूगल पार्टनर, राइट। वो पार्टनर का बेच कब मिलता है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो 2000 क्रेडिट कैसे मिलती है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि सपोज मैंने नई ऐड चालू की है तो मेरे, और तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं जब ये अकाउंट ओपन करूंगा ना तो जब यहाँ पर आपको ये क्रेडिट जो मिलेगी ना वो आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ट्रेनिंग इन एसईओ में ही दिखा देता हूँ। टूल्स में जाना पड़ेगा, राइट। क्रेडिट कहाँ पर ऐड करनी है वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। और आपको जाना पड़ेगा प्रमोशन में शायद, राइट। यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। दिखा मैंने कब किया था? 2016 में ऐड किया था, जनवरी 27, राइट। तो यहाँ पर और कोई नया है तो भी आप कर सकते हो। यस, ऐसे जो प्रमोशन कोड मिले ना वो यहाँ पर ऐड करके सबमिट कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? राइट, राइट। 2015 में, राइट। तो द पॉइंट इज दैट यहाँ पर आप उसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपको कैसे मिलेगा? अगर आपने एक महीने में 500 रुपये स्पेंड किए तो आपको नेक्स्ट महीने के लिए 500 रुपये का क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने 2000 रुपये स्पेंड किए तो आपको 2000 रुपये की क्रेडिट मिलेगी। अगर आपने 5000 किए तो भी आपको 2000 की क्रेडिट मिलेगी। माने 2000, ऐसा नहीं आप जितना स्पेंड करोगे उतनी क्रेडिट मिलेगी। 2000 इज द अपर लिमिट, द हाईएस्ट अमाउंट अप टू 2000 they are supposed to give you as a credit। ठीक है, डन। उसके बाद सेटअप, अगर आपको सेटअप में कोई भी हेल्प की जरूरत है तो ये नंबर पर आप कॉल करके फ्री अकाउंट सेटअप की हेल्प, और वो लोग आपको बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। लेकिन जो सेटअप वाले लोग होते हैं वो समझ लेना वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, राइट। उनको बेसिक ट्रेनिंग दी गई होती है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो दे आर बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आपको पता है बहुत सारी चीजें तो आपको 100% उन पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि उनका क्या गोल रहता है पता है आपको? इन जनरल जब हम लोग बात करते हैं ना तो उनका गोल एक ही रहता है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा गूगल को खिलाओ, माने ज्यादा से ज्यादा आप पैसे बीड में रखो या आपका बजट बढ़ाओ। वही उनका। अगर हम बोले कि यार क्लिक नहीं मिलती है तो वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्लिक आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ाओ। वो ऐसा ही बोलेंगे बीड बढ़ा दो सर आपकी, राइट। या फिर आपका बजट बढ़ा दो, वो क्लिक मिलने लगे, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। तो वो आपको ध्यान में रखना है। गूगल पार्टनर का बेच, तो गूगल पार्टनर का बेच कब मिलता है? तो लास्ट 3 महीने में अगर आपने 10,000 USD से ज्यादा स्पेंड किया है तो आपको गूगल का बेच मिलेगा। ये एमसीसी बेच नंबर 1। मानी लास्ट 3 महीने में अगर आपने 7 लाख रुपए से ज्यादा गूगल एड्स में स्पेंड किए हैं, आपके नहीं पूरे अकाउंट पे मिला के, तो आपको गूगल एड्स का बेच मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके वहां पर गूगल एड्स के सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स आपको दिख रहा है। नंबर 3, आपका एमसीसी अकाउंट 1 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एमसीसी अकाउंट दिखाया, ये पूरा जो अकाउंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नंबर 4,
आपका परफॉर्मेंस गूगल के बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से ज्यादा होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि यहाँ पर प्रोफेशनल काम कर रहा है, राइट, करेक्ट। ये 4 क्राइटेरिया है जिससे आपको गूगल पार्टनर का बेज मिलेगा। आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपको ऐसे एड्स का स्ट्रक्चर बनाकर 3 वेबसाइट के लिए, यहाँ पर मैं हियर एंड देयर आपको दोनों करना है, टोटल 2 वेबसाइट का करना है, राइट, करेक्ट। हियर भी आप वहां पर ही हो और एट योर प्लेस भी आप वहां पर ही हो, राइट। तो ये आपको 2 वेबसाइट का ऐसे मुझे स्केलेटन देना है, ऐसे ऐसे स्केलेटन देना है, और ये एक्सरसाइज आई विल चेक 100%, राइट। जिन्होंने नहीं की है उसको 50 INR पेनल्टी लगेगी, जो पास की पेनल्टी है उसको क्यूमुलेट हम लोग लास्ट लेक्चर में कर लेंगे, राइट, जो भी है वो, राइट। तो ठीक है, तो ये आपको एक एक्सरसाइज हुई, और दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपको वो जो ROI कैलकुलेट करना है ना, राइट, वो आपकी एक्सरसाइज है, वो इसी तरीके से करना है। आपको किस तरीके से करना है? इसी तरीके से, यहाँ पर एक लिखना है, यहाँ पर आप लिखते जाना है, और आपकी यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ये 3 प्रोडक्ट, ये 5 प्रोडक्ट और सर्विस के लिए करना है, राइट। ये 5 मिनिमम है, ज्यादा जितना करना है आप कर सकते हो, आई डोंट माइंड, जितना ज्यादा करोगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पूरा लेक्चर अभी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, 10 मिनट में 10:05 हुई है, 10:15 तक हमें खत्म कर देना है, ओके। तो सबसे पहले वाई, यस, यहाँ पर यस। सो सबसे पहले लोकेश आप बताओ, पेड मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? व्हाई वी शुड डू द पेड मार्केटिंग? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, इसमें सर अपन पेड पेड मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए सर, इसमें अपन सर अपने सर ऑडियंस को सर ऐड दिखा सकते हैं सर, मतलब टारगेट रीजन तो किसको दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये सब सर हम डिफाइन कर सकते हैं करेक्ट, ये उसके बेनिफिट है, ये सर। ये बेनिफिट है, लेकिन आई इन नटशेल आई वुड लाइक टू नो कि क्यों करना चाहिए। past results. सर पास इसमें रिजल्ट, હેલો हाँ बोलो। સર કેશ ઇન્ફ્લો માટે બિઝનેસ વધારવા માટે यस, इन नटशेल अगर आपको फास्ट रिजल्ट Late. चाहिए और इनको बढ़ाना है, तो यू शुड गो विथ दिस, राइट, ओके। बेनिफिट क्या, लुक, जिगर भाई आप बताओ, बेनिफिट क्या है पेड एडवर्टाइजमेंट? બેનિફિટ થી આપણે બ્રાન્ડિંગ કરી શકાય. એક તો આપણું બ્રાન્ડિંગ, જે નવી પ્રોડક્ટ હોય તો આપણે બ્રાન્ડિંગ થઈ શકે. રાઈટ, કોઈ આપણી પ્રોડક્ટ એવી છે જેને આપણે અવેરનેસ કરવું છે તો અવેરનેસ પણ થાય. કરેક્ટ, કોઈ એવી એડ છે કે વધારે કન્વર્ઝન જોઈએ તો આપણને વધારે કન્વર્ઝન મળે. આપણે ગોલ વાળી એવું કર્યું હોય કે ભાઈ કન્વર્ઝન મળવું જોઈએ તો વધારે આપણને લીડ મળે તો આપણને બિઝનેસ મળે ક્લિક કરીને. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन मैंने जो 5 पिलर बताए, राइट, वो वैभवी आप बताओ, 5 पिलर के बारे में मुझे बताओ। एक तो ऑडियंस, which audience to whom you show your ad, To मतलब whom you would audience like to આપણે show your select, ad. Correct, yeah, audience select કરી શકાય છે, region select કરી શકાય છે, કઈ country, કયા state, કઈ સિટી, અરે પિન કોડ ના લેવલ નું કરી શકો। મારી એડ ખાલી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ પર દેખાડવી હોય ને તો હું દેખાડી શકું, એ લેવલ નું છે એની અંદર। wow. એ હું તમને અંદર આવશે એટલે કહીશ। યસ, ચલો નેક્સ્ટ। Okay, so that is one more segment, and another is you can decide your budget, which ad you should spend, how much INR or how much currency करेक्ट, for that marketing, करेक्ट, and you can decide what you Day and wanna time. show. Day and time. Yeah, day and time પણ decide કરી શકાય, અને શું ad માં શું particular show કરવું છે, which landing page or which product you should highlight in your ad, करेक्ट। व्हाट टू शो, व्हेन टू शो, राइट। એજ ગ્રુપ. where to show. व्हाट टू Yeah, शो मैंने लिखा है, व्हाट टू शो हाँ लिखा लिखा है है, सर. ठीक है। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो, राइट। ऑडियंस आप डिफाइन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डे एंड टाइम, डेली बजट, राइट, करेक्ट। तो इससे फायदा अल्टीमेटली क्या होता है? व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट?
we can track everything and we can analyze the net profit with the calculation. Like door marketing या stall marketing એ બધા cases માં we do marketing but we don't have the backup, we don't have the targeted audience कहाँ से कहाँ आई, वो पूरा ट्रैक नहीं हो सकता. यहाँ पे पूरा ट्रैक हो सकता है. Okay. Out of 100 users we get 5 clicks and whatever the net amount we can multiply it and divide by the net profit. સર Yes. આપણને એ ખબર પડી છે કે કયા ઓડિયન્સ માંથી આપણને બિઝનેસ મળે છે તો આપણે એ ઓડિયન્સ ટાર્ગેટ કરીએ એ જ ટાઈમે એ જ દિવસે જેન્ડર વાઇઝ એજ વાઇઝ Correct. રિજન Correct. વાઇઝ Correct. Correct. એ ગૂગલ એનાલિટિક્સ ખબર પડે આપણને કયા જેન્ડર માંથી આપણને બિઝનેસ મળે છે, કઈ એજ ગ્રુપ માંથી મળે છે, તો આપણે એને ટાર્ગેટ કરીએ. કરેક્ટ. ટૂંકમાં એક વાક્યમાં જે વર્કિંગ ઓડિયન્સ છે, જે આપણને બિઝનેસ આપે, જે ઓડિયન્સને ચાલુ રાખવાની, અને જે ઓડિયન્સ આપણને બિઝનેસ નથી આપતી, ખાલી કોસ્ટ પેદા કરે છે, એને બંધ કરી દે. ધેટ્સ ઇટ. અને એ પૂરો કંટ્રોલ તમે ગૂગલ એડ્સ થી કરી શકો. રાઈટ, યુ કેન ડુ ધ હોલ થિંગ્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ગૂગલ એડ્સ. ધેટ ઇઝ ધ બેનિફિટ. ઓકે, આમ લોગ like everyone knows festival થી business boost થાય છે, પણ with Google Ads we can know festival na particular time duration ma, like within a month or within a week or within 3 days around the festival we can track that. Yes, not only Google Ads, you can track in Facebook as well, LinkedIn ads, Twitter ads. Yeah, just the paid marketing. Yeah, that is the paid marketing. वो सब में आप कर सकते हो. सर कंसिडरेशन से कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन से टाइप के एड कैंपेन ज्यादा बेटर रहते हैं? लीड कैंपेन और ई-कॉमर्स सेलिंग कैटलॉग कैंपेन. सिंपल. ये वो 3 कैटेगरी है उन्होंने दे रखी है. They have given this 3 categories. सबसे पहले अवेयरनेस और ब्रांडिंग की कैटेगरी है, उसके बाद कंसिडरेशन की कैटेगरी है और उसके बाद कन्वर्जन की कैटेगरी है. So you just have to shift your goal from consideration to lead campaign or catalog campaign or that type of campaign that will produce the result. Right. Okay. Thank you. सर इसमें फेक क्लिक नहीं हो रहा है, वो कैसे मालूम पड़ सकता है? फेक क्लिक में बेसिकली ऐसा है कि गूगल, जब हमने गूगल का ये लेक्चर अटेंड किया था ना, गूगल ने स्पेशली गूगल एड्स को प्रमोट करने के लिए आज से 6-7 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था. वो फ्री था, 3 दिन का था. तो उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन रेज हुआ था. तो उन्होंने बताया था कि उनका क्या होता है कि जो क्लिक की पैटर्न है और एक ही आईपी से अगर वो ज्यादा क्लिक आती है ना, तो वो लोग आपको चार्ज नहीं करते. राइट, क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर है, राइट, जो एवरी मॉर्निंग अगर सपोज आपकी एड पर क्लिक करके चला जाता है, तो गूगल को पता रहता है कि ये आईपी से कंटिन्यूअस क्लिक आ रही है. तो वो लोग क्या करेगा, 2 चीज करेगा. या तो एड ही दिखाना बंद कर देगा वो आईपी पर, या फिर वो आईपी से आई हुई क्लिक आपके लिए कंसिडर नहीं करेगा. राइट, तो उसके स्पैम फिल्टर बहुत स्ट्रांग है. राइट, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो और भी स्ट्रांग हो गए. राइट, सो द पॉइंट इज दैट कि कभी भी, और वर्स्ट केस में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप गूगल को रिपोर्ट भी कर सकते हो कि ये मुझे फेक आई हुई लग रही है, तो दे विल गिव यू क्रेडिट बैक. लेकिन मेरे करियर में कभी ऐसा हुआ नहीं. राइट, आई हैव नेवर सीन द सेम इन माय करियर. राइट, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनका स्पैम फिल्टर बहुत स्ट्रांग है और दे डू नॉट बिलीव इन सच प्रैक्टिसेस. राइट सर, एक दूसरा तरीका ये भी है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया से बहुत ही अनयूजुअल क्लिक्स आ रही है, तो उस एरिया को, उस पिन कोड को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं हमारे कैंपेन्स में से, अगर कोई ऑफिसेज में बैठ के क्लिक कर रहा है फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स. हाँ, कर सकते. वो तो आपको वैसे भी हम लोग जो फिल्ट्रेशन करेंगे ना, उसमें जो हम लोग ROI कोई भी ऐड का कैसे बढ़ाना है, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो. तो यस, ये भी कर सकते हो आप. लेकिन वो आईपी में क्या होगा कि वो आईपी में एक इंडिविजुअल आईपी नहीं होगा. लोग अभी डायनेमिक आईपी यूज करते हैं. राइट, आपका आज आईपी अलग होगा, कल आईपी आपका अलग होगा. राइट, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस से आप चेक कर सकते हो. तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो
आप कर सकते हो कि भाई लेकिन फिर भी अगर आप उससे बहुत अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है या फिर आपको उससे कन्वर्जन नहीं मिल रहा है तो यू कैन डू दैट। ओके, नेक्स्ट इज ओके, यस यस विशाल, आप बताओ कौन कौन से टाइप से आप मार्केटिंग कर सकते हो? व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग? वेज टू वेज की बजाय टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। Hello. यस, So types of marketing. जो मैंने लास्ट सिखाया था ना पेड एडवर्टाइजमेंट में, वो, या फिर मार्केटिंग के कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं? હેલો, हाँ હું કહું સર? હા બોલો ને. ડિસ્પ્લે હોય, એટલે સૌથી પહેલા બ્રાન્ડિંગ અને અવેરનેસ, બ્રાન્ડિંગ અવેરનેસ, ડિસ્પ્લે, વિડીયો, પછી છે કન્સિડરેશન, Offers. ત્રીજું हाँ, છે पची conversion. कन्वर्जन, राइट? तो ये बेसिकली 3 है। उसमें मैंने और भी कई सारी चीज आपको यहाँ पर लिख कर दी है, राइट? तो हाँ। वो आप वहां से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज कौन मुझे एक प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करेगा उसका ISCPC? સર હું કરું? हाँ, एक प्रोडक्ट ले लो XYZ और उसके लिए मुझे, मैंने जो कैलकुलेट किया था ना कि मैक्सिमम CPC हम लोग इतनी रख सकते हैं, એ મને કોણ એક્સપ્લેન કરશે? હુ વિલ એક્સપ્લેન મી? હું કરું સર? હા કરી દો બધું, પણ તમે એકવાર રન કરી છે ને એટલે તમને વધારે ઇનસાઇટ આવી છે. આઈ તો એપ્રિશિએટ તમે ધેટ. બીજું કોઈ કરે, વાંધો નહીં, કોઈ વાંધો નહીં. હા, એટલે બીજું કોઈ કરે ને તો સારું છે. પછી એમાં પ્લસ માઇનસ હશે તો તમે કરી દેજો એમાં. હા, કોઈ हेलो વાંધો નહીં. हेलो सर, હું કરું? હા બોલો. ઓકે, સમજી લો કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે જેની એકચ્યુઅલમાં પ્રાઇસ, સેલિંગ પ્રાઇસ છે જે 5000 રૂપિયા છે વેરી ગુડ, અને એની મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ છે એ 3000 રૂપિયા છે, વેરી ગુડ, તો એમાં પ્રોફિટ થાય છે કંઈક 2000 રૂપિયા. વેરી ગુડ, 2000 રૂપિયા પ્રોફિટ થાય છે. પછી એ સમજી લો કે કોઈ આમ ઈ કોમર્સ છે, ઈ કોમર્સ Very good. છે એટલે એનો કન્વર્ઝન રેશિયો જ ડાયરેક્ટ ગણાશે. વેરી તો ગુડ. આપણે આમ જનરલી બેન્ચમાર્ક જોઈએ તો 2 to 3% લઈએ, આપણે 3% બી લઈએ વેરી ગુડ, તો ડાયરેક્ટ આમ આપણે 2000 જે પ્રોફિટ છે એને ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરી દેવાનો છે 3 જોડે, વેરી ગુડ, એટલે 6000 રૂપિયા નેટ પ્રોફિટ થાય છે. વેરી ગુડ, એમાંથી આપણે ભાગ્યા 100 કરીએ તો 60 રૂપિયા જેવું કંઈક થાય છે, વેરી જે ગુડ, હાઈએસ્ટમાં હાઈએસ્ટ આપણે પરફેક્ટ, એક્સેલન્ટ, કરી એક્સેલન્ટ, શકીએ છીએ. બહુ પરફેક્ટ, બહુ જ પરફેક્ટ છે કે આ રીતે બહુ આટલું સિમ્પલ છે, રાઈટ? કે ભાઈ આ રીતે તમે મેક્સિમમ CPC, તમે જુઓ કે તમારી જોડે બે ડેટા હોય, એક તો એનો પ્રોફિટ અને કન્વર્ઝન રેટ, તો તમે કોઈ પણ ક્લાયન્ટને જ્યારે ડેમો આપતા હો ને ત્યારે બી સમજાવી શકો આ એટલું ઈઝી છે, અને આનાથી એનો કોન્ફિડન્સ બહુ જ વધી જશે તમારામાં, કારણ કે એને ખબર પડશે કે ઓકે, તો ધ પોસિબિલિટી ઇઝ વેરી હાઈ દેટ તમારે ખાલી એક જ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે આમાં કે જે પેલો કન્વર્ઝન રેટનો વેરિયેબલ છે ને એને મેન્ટેન કરવો પડશે, બસ ધેટ્સ ઇટ. અધરવાઇઝ it will be, મને સર્વિસ વેબસાઇટ નું કોણ સમજાવશે? who will explain me for the service website? આ એમણે ઈ-કોમર્સ નું સમજાવ્યું, હવે એક સર્વિસ વેબસાઇટ નું સમજાવી દો એટલે આપણું આ સરસ ટોપિક પતી જાય. યસ, સર્વિસ વેબસાઇટ નું એનીવન? સર્વિસ જીગરભાઈ તો છે જ નહીં સર, પછી જો કોઈ नहीं समझाया. जयेश गज्जर, सागर ठक्कर, यस सरिता. ओके सरिता, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सर मुझे वो पता नहीं एक्चुअली. ओके, अंशु आप कर सकते हो? पता है कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक जो आपने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट पर सेल जो उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है विजिटर लीड जितनी मिली है. मुझे स्टेप बाय स्टेप चाहिए, एक्सप्लेन कर देती हूँ. गुचड़म पुचड़म नहीं चाहिए. I'll do it, sir. What is the cost of service? The profit of your service first. Let's say 18,000 rupiah, 20,000 rupiah for an example. Okay, Is the profit on the service. હવે એનાથી per click profit છે કે એની સેલિંગ પ્રાઇસ છે? selling price. હા, Let's say minus 5,000 નીકાળીને 15,000 આપણે profit કરી નાખ્યો. ઓકે, હવે on every 100 visitors we are having 5 leads, 5%. ઓકે, વેરી ગુડ. હવે ઈ 5 લોકોમાંથી I have 40% conversion, 40% લોકો મને પૈસા આપે છે એના. ઓકે,
So એટલે 5 માંથી 2 થશે. હા, 5 માંથી 2 થશે અને ઈ બે લોકોના 20,000. So 40,000 is what I'm making and 30,000 is the profit. No, હા, perfect. 30,000 is the profit. Perfect, right? તો મારી maximum CPC કેટલી થશે? हाँ भाभी 300 rupees. 300 rupees divided by 100. Very good, perfect, excellent, good. તો ये હવે અંશુ તમે કહો કે ગૂગલ જ્યારે ઓપ્શન કરે ત્યારે કયા કયા ક્વોલિટી સ્કોરમાં કયા કયા પેરામીટર કન્સિડર કરે? What are the parameters Google consider when Google do the auction? ક્વેશ્ચનમાં જલ્દી મને ખબર ના પડી. શું કહો છો? તમારા ક્વેશ્ચનમાં મને ખબર ના પડી કે તમે કયો ક્વેશ્ચન. ઓપ્શન ગૂગલ જ્યારે તમે સર્ચ કરો છો ગૂગલ પર, ઓકે રાઈટ, ત્યારે ગૂગલ જેટલા બી લોકો એડ કરવા માંગે છે ને એની વચ્ચે ઓપ્શન કહેવાય. ઓપ્શન એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? લીલામી. નીલામી. relevant હા હા. તો એ જ્યારે કરે તો ખબર પિક્ચરોમાં દેખાડે છે પેલા ભાઈ બેઠા હોય ને બહાર પાછળ બીજા બોલી બધા બેઠા लगती है. હોય. તો એવું જ્યારે કરે ત્યારે ગૂગલ કયા બેઝિસ ઉપર કોને પહેલો રાખવો કોને બીજો રાખવો એ કયા બેઝિસ ઉપર નક્કી કરે? ધેટ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. સમજી ગઈ. એકચ્યુઅલી એમાં ફર્સ્ટ છે તમારી પ્રોડક્ટ કેટલી છે એ, કે તમે કેટલી તમારી ક્વોલિટી ઓફ પ્રોડક્ટ નંબર્સ કે તમે કેટલી મૂકવા માંગો છો. નહીં, સૌથી પહેલા નહીં. ક્વોલિટી સ્કોર આવશે. ads relevancy CTR. એક મિનિટ, ક્વોલિટી સ્કોર આવશે સૌથી પહેલા. ક્વોલિટી સ્કોરમાં એને બોલવા દો, જેટલું એને એ Okay, બોલશે ને એનો કોન્ફિડન્સ વધશે. હા એ જ કહું છું કે ક્વોલિટી સ્કોર કે આપણે કેટલા નંબર્સમાં તમારી આવશે એ first. નહીં, ક્વોલિટી સ્કોર કયા વસ્તુથી ડિફાઇન થાય? વોટ આર ધ થિંગ્સ વિચ ડિફાઇન ધ ક્વોલિટી સ્કોર? એક્ઝામ્પલ કે ક્વોલિટી સ્કોર કે ટ્રેનિંગ ઇન એસઈઓ છે તો તમે ટ્રેનિંગ ઇન એસઈઓ માં તમારે કેટલા નંબર્સ તમારે મૂકવા છે એમાં. નહીં 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 નહીં, એ નથી એ નથી ઓકે એ નથી. હા, હવે બોલો કોઈ. વૈભવી કહેતા હતા, કોણ કહેતું હતું જવાબ? હા, ક્વોલિટી સ્કોરમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવશે? અમિતભાઈ બોલો, અમિતભાઈ કી કહેવા માંગે? CTR ad CTR. relevancy. જો સૌથી પહેલા આપણને જ્યારે તમે એડ કરો છો તો સૌથી પહેલા તમને શું દેખાય છે? એડ દેખાય. તો સૌથી Right. પહેલો આમાં ગોખવાની કઈ જરૂર નથી કે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમે સિસ્ટમેટિક વિચારો એટલે આપોઆપ જવાબ આવવા. સૌથી પહેલા શું દેખાય છે? તો સૌથી પહેલા એડ દેખાય છે, તો એડ નહીં રિલેવન્ટ. બીજું શું દેખાય છે? એડ એક્સટેન્શન દેખાય, તો એડ એક્સટેન્શન નહીં રિલેવન્ટ. ઓકે ત્રીજું શું દેખાય છે? લેન્ડિંગ પેજ આવશે. ના, ત્રીજું દેખાશે CTR. CTR. કોઈ જોઈએ ને કેટલા લોકોએ ક્લિક કરી, રાઈટ, એટલે CTR. અને ચોથું તમે ક્લિક કરીને ક્યાં જશો? તો લેન્ડિંગ પેજ પર. Landing relevancy. લેન્ડિંગ Yeah. પેજની રિલેવન્સી. આ એકદમ ઈઝી છે, અને કોઈ જગ્યાએ યાદ નહીં રાખો. તમે ખાલી યુઝરની જર્ની મગજમાં વિચારશો એટલે તમને બધા જવાબ આપવામાં આવશે, રાઈટ? ઓકે, તો એક ક્વોલિટી સ્કોર છે, અને ક્વોલિટી સ્કોરની રેન્જ કઈ હોય? 1 to 10. 1 to 10. 1 is the 10 lowest, is the first. highest, right? Yeah. કરેક્ટ. ઓકે, વેરી ગુડ. તો તમે જ્યારે બાય ડિફોલ્ટ કેમ્પેન નવું ચાલુ કરશો ને ત્યારે એ લોકો 6 આપશે ક્વોલિટી સ્કોર. 6 they will give you 6 as a default quality score. પછી પ્લસ માઇનસ તમારા આ મેટ્રિક્સ થી જશે. ઓકે, હવે મને એક જણ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવો 3 વેબસાઇટ નું કે એ ક્વોલિટી સ્કોર કેવી રીતે વર્ક કરશે. With relevant keyword. Hello. હા, બોલો બોલો. CPC into rank. હા, CPC Oh, yeah. into quality score is equal to ad rank. એટલે જેનો ad rank highest એને ગૂગલ ટॉप પર મૂકશે. Top mount. पर Right. हमको अभी नहीं पाएगा ना, हम जिगर भाई को कॉल करेंगे. ના ભાઈ ના. हाँ हाँ पक्का. હું તો જીગરભાઈ આવું હું તો હવે વાત કરવાનું કરું. તો સ્ટુડન્ટ્સ ને. હું તો હવામાં વાત કરું છું ભાઈ. नहीं, इस टॉपिक पे तो करेंगे ही करेंगे. જીગરભાઈ હંમેશા તમે કોઈને શીખવાડશો ને તો તમારું કોન્સેપ્ટ વધારે પાકો થશે. સાચી વાત છે. તો મને બી ખબર પડશે. હા, અને બે વસ્તુ નવી શીખવા મળશે, સાચી વાત છે. રાઈટ? ઓકે, વેરી ગુડ, ગુડ. તો ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધેટ કી ક્વોલિટી સ્કોર મલ્ટીપ્લાય બાય CPC ઇઝ એડ રેન્ક, રાઈટ? તો આ એક ક્વેશ્ચન હશે. આ બધા હું આજે બધું બોલ્યો છું ને એ 5 થી 10 ક્વેશ્ચન હશે, તો એ ધ્યાન રાખજો, રાઈટ? અને એ લોકો રિયલ કેસ સ્ટડી થી જ પૂછશે, જે આપણે છેલ્લે
પેલામાં જોયું હતું ને આપણે છેલ્લો લેક્ચર એનાલિટિક્સ નો હતો ને આપણે શું હતું ચેનલ પેલો શું લેક્ચર હતો Console. ના કોન્સોલ ની પહેલાનો છેલ્લો કોન્સોલ નો હતો આપણે Attribution. હા એટ્રીબ્યુશન હતો ને બસ એ એટ્રીબ્યુશન માં પેલું એક ખબર છે મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ પેલા એની ઉપરથી વેબસાઇટ ઉપરથી જઈને ગયો હતો કે ભાઈ ડેઝી હતી એને સૌથી પહેલા તમારું આમાંથી જોયું પછી ઈમેલ કેમ્પેન થી જોયું પછી બધા ક્વેશ્ચન હશે Call to action. રિયલ લાઈફ ના એ લોકો એક્ઝામ્પલ મૂકશે રાઈટ અને એટલે બેઝિકલી એ જ જોશે કે તમે જ્યારે ક્લાયન્ટને સર્વિસ આપો છો અથવા પોતાના માટે કરો છો અને આવી કોઈ સિચ્યુએશનમાં તમે ફેસ કરવાની આવે છે તો તમે શું સોલ્યુશન લઈ શકો राइट व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन यू कैन टेक दैट इज दैट गुड ओके सर मतलब एग्जाम कौन लेगा हमारी इसकी? गूगल लेगा गूगल है ना? हाँ वही ठीक है गूगल लूंगा मैं नहीं लेने वाला गूगल हाँ लेगा 5 मिनट ओके एडवर्ड इंटरफेस હવે મને કોણ સમજાવશે એડવર્ડ ઇન્ટરફેસ હુ વિલ એક્સપ્લેન મી એડવર્ડ ઇન્ટરફેસ હેલો બોલો પેલા જીગરભાઈ અરે ના બીજું બોલો. તો કોઈ સમજાવો યાર જીગરભાઈ સિવાય હું ના બોલું કેમ્પેઇન અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેમ્પેઇન હા અમિત સમજાવશે અમિતભાઈ મને સમજાવો મને આપણું એડવર્ડ નું ઇન્ટરફેસ સમજાવો ટોપ લેવલ પર શું હોય એની નીચે કોણ હોય એની નીચે કોણ હોય એડ એકાઉન્ટ આવશે વેરી campaigns ગુડ and groups વેરી and ગુડ ads. એની પછી નીચે કેમ્પેન આવશે બે વેરી ગુડ એની નીચે એની નીચે આવશે એડ એ અને એડ બી એડ ગ્રુપ હા એડ ગ્રુપ એડ ગ્રુપ ની નીચે આવશે એડ્સ અને Keywords. કીવર્ડ્સ રાઈટ ધીસ ઇઝ ધ આ એટલા માટે જરૂરી છે આ સ્ટ્રક્ચર તમારા મગજમાં ક્લિયર હશે ને તો તમે ડિફાઇન સારી રીતે કરી શકશો ધેટ ઇઝ ધ ગોલ રાઈટ અહીંયા આની ઉપર એમસીસી આવશે અહીંયા આની ઉપર આ લોકોએ કર્યું નથી અહીંયા એમસીસી આવશે એની નીચે એડવર્ડ આવશે એની નીચે કેમ્પેન આવશે સો એમસીસી ઇઝ એજન્સી નું ઈમેલ આઈડી એટલે એમસીસી અકાઉન્ટ તમારું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુઝરનું અકાઉન્ટ એટલે એડવર્ડ અકાઉન્ટ કેમ્પેન 1 એટલે તમારી વેબસાઇટ કારણ કે એક જ માણસ મલ્ટિપલ વેબસાઇટ હેન્ડલ કરતું હોય કેમ્પેન 1 એટલે એક પહેલી વેબસાઇટ એડ ગ્રુપ 1 એટલે તમારી પહેલી સર્વિસ અને એની કીવર્ડ એટલે એ સર્વિસ માટે જે લોકો સર્ચ કરે છે એ કીવર્ડ અને જે લોકો ને એડ દેખાડવાની છે એડ ક્લિયર ફ્રેન્ડ સર હા બોલો આપણે એમસીસી જે સમજો કોઈ એજન્સી કોઈની એડ કોઈનું કામ લે છે પીપીસી ને કે કોઈ બી તો એનો પ્રોફિટ માર્જિન કઈ રીતે કસ્ટમર કહેશે કે મારા આટલા ખર્ચો અને તારો આટલો ખર્ચો મારે ગૂગલ ને ચૂકવો પણ આટલું મને આટલું મારું ઉપર એમ એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું એનું એમાં બેઝિકલી બે રીતે કરવાનું એક તો તમારે કોઈને કેવું હોય તો તમારે એક તો ફ્લેટ રેટ તમે લઈ શકો કે ભાઈ મારી આટલી એફર્ટ છે લોકો બે રીતે લેતા હોય છે એક તો ફ્લેટ રેટ અને બીજું કમિશન કે ભાઈ તમે 100 રૂપિયા ખર્ચશો એડમાં તો 10 રૂપિયા અમારા અમે તમને ચાર્જ કરીશું તમે લાખ રૂપિયા ખર્ચશો તો વી આર ગોઈંગ ટુ ચાર્જ યુ 10,000 સમજ્યા ઓકે કમિશન બેઝ એટલે લોકો કમિશન બેઝ લેતા હોય છે અમે લોકો ફ્લેટ લઈએ કે ભાઈ તમે લાખ રૂપિયા કરો કે 10 લાખ રૂપિયા કરો વી ડોન્ટ માઇન્ડ એટલે આપણે કહી શકાય કે મહિને 3,000 કે 5,000 લઈ શકાય હા એટલે તમારી જે એફર્ટ છે એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો ખ્યાલ આવી ગયો ઓકે તો કેમ્પેન નું સ્ટ્રક્ચર આવી ગયું ઓકે એમસીસી અકાઉન્ટ એજન્સી માટે છે હવે મને એવું કહો કે ક્રેડિટ માટે ક્યારે તમે એલિજિબલ થાઓ કયા કયા ક્રાઇટેરિયા છે આ જરૂરી છે આ જાણવું જરૂરી છે ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોણ બતાવશે 7 લાખ રૂપિયાનું કામ કરેલું એડવર્ડ નું 3 મહિનામાં છેલ્લા હા એમસીસી તો બરાબર છે પણ તમને ક્રેડિટ ક્યારે મળે एक वीक में यूज करवा ऊपर વેરી ગુડ 2000 Google badge ની right ના ગૂગલ નહીં, batch का नहीं। 8 દિવસમાં કરેલું હોય 2,000 રૂપિયાનું જ્યારે તમે એઝ અ માર્કેટર જ્યારે નવી એડ ગૂગલ પર મૂકવા જઈ રહ્યા છે તો ગૂગલ તમને 2,000 રૂપિયાની જે ક્રેડિટ આપે છે એ ક્યારે મળશે ધેટ ઇઝ માય सेम लोकेशन में हो તમે सेम कंट्री में જેની કરન્સી હોય no only your account should be not older than 1 week હા એ હમણે કહી દીધું પછી in that case only you can earn 2,000 rupees આ એક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે બીજી કઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે બીજું constraint કરન્સી એટલે મારે અહીંયાથી યુકે નું કરવું હોય તો હું કરી શકું પણ મારે જે યુકે વાળું જે યુઆરએલ છે ને ત્યાંથી ક્રેડિટ લેવી પડે એનું ઈમેલ આઈડી નાખી હું ઇન્ડિયાના ઈમેલ આઈડી થી લઉં ને તો ના ચાલે કારણ કે એ મને જે ક્રેડિટ મળવાની છે ને એની કરન્સી
અને જે મારા અકાઉન્ટ મેં જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું એ બંનેની કરન્સી મેચ થવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ ગોલ. નંબર 3 ફટાફટ મારે 1 મિનિટમાં ખતમ કરવાનું. નંબર 3 છે કે તમને મેક્સિમમ 2000 મળે. નંબર 4 છે કે તમને જેટલા શું કહેવાય એડના સ્પેન્ડ કરો તો પણ એ 2000 ઇઝ ધ મેક્સિમમ. લેસ ધેન 500 સ્પેન્ડ કરો તો યુ વિલ ગેટ 500 ઇક્વલ્સ ટુ ધેટ. હા, અને નંબર 4 છે કે તમને એક જ વાર એક અકાઉન્ટ પર મળશે. રાઈટ? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આ તમારે લોકોને બધાને એક્સરસાઇઝ મસ્ટ ટુ હેવ છે, કમ્પ્લીટ કરીને લાવવાની રહેશે. આ સ્પ્રેડશીટનો એક્સેસ અને ગૂગલ ક્લાસરૂમનો એક્સેસ પ્રોબેબલી આજે તમને 4 વાગ્યા પહેલા બંનેનું મળી જશે. રાઈટ? નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ મીટ ઓન સેટરડે એન્ડ વી વિલ ક્રિએટ વન કેમ્પેન. સર્ચ કેમ્પેન આપણે મંડે ક્રિએટ કરીશું. રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ. સર મંડે નહીં, સેટરડે. ટ્યુઝડે આજે થર્સડે થયો ને, એટલે હવે સેટરડે આવશે. हाँ सैटरडे आएगा सर. રાઈટ? સેટરડે આપણે સર્ચ કેમ્પેન ગૂગલ પર ક્રિએટ કરીશું. ઠીક છે? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ. બાય. ઓકે સર. Bye.